नमस्कार, जय हिंद एंड जय भारतम। आज हमारे साथ हैं सुमित वालिया। और आप माने या ना माने, मानव जीवन में कोइंसिडेंस का बहुत महत्व होता है। और ये कोइंसिडेंस ही था कि ड्यूरिंग कोविड टाइम मैंने कोई मेजर आगामी हैं, उन्होंने अपना व्हाट्सएप चैनल शुरू किया था मिलिट्री हिस्ट्री पे और वार्स के। वो काफ़ी अच्छे मैप्स बनाते थे और उसमें सुमित वालिया भी थे। And somehow we started talking, thanks to our love for military history and books. Sumit is in Germany. More about himself he will say. He will give us more information. और मैं यहाँ इंडिया बैंगलोर. Today is the first time even we are seeing each other Yeah. face to face. But on WhatsApp we kept chatting. We kept discussing about books and other topics. He is an avid reader and he has contributed many articles also in IDR, if I'm not wrong. Mhm. And so when we started talking, we just thought that, okay, let's discuss a few things as armchair generals sitting in your room. क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, कैसे होना चाहिए था, what went right, what went wrong. ये this discussion just to understand our military history, specifically after independence. और क्योंकि our reference point is always the previous war. तो ऑपरेशन सिंदूर की बात चल रही थी हम लोगों के बीच और इट गॉट मी थिंकिंग कि नहीं, जहाँ तक मुझे लगता है इंडियन मिलिट्री हिस्ट्री में के जितने भी वॉर्स और ऑपरेशन हम लोगों ने किए हैं, द लिस्ट टॉक्ड अबाउट ऑपरेशन इज ऑपरेशन मेघदूत or probably Operation Pawan, which we did in Sri Lanka. But that was much talked about, I remember. There were many articles in newspapers. Even India Today brought out one special, issue on Operation Pawan. Raj Chengappa, I still remember he was in Colombo and he reported from there. He was a sort of war journalist, or I don't know, but I remember the name Raj Chengappa. Anyways, so today we are going to discuss Operation Meghdoot. Why Meghdoot? Because I believe your geography decides your history. That's right. And Siachen, on one side there is a Karakoram, on top there is a Saksham Valley where China is sitting. And on west, we have our arch enemy, Pakistan. Imagine अगर 84 में बुल नहीं गए होते अपना ऑपरेशन लेकर लेकर के, और इंडियन आर्मी जो है वो साल्तोरो रेंज को पे अपना आधिपत्य नहीं जमाया होता, तो पाकिस्तान चाइना एक साथ मिल गए होते, तो आज जो ऑपरेशन सिंदूर का स्वरूप शायद कुछ दूसरा होता, शायद। Mm. दूसरा कारण यह है ऑपरेशन मेघदूत के बारे में डिस्कशन करने का कि कारगिल, इट इज वाइडली बिलीव्ड एंड इवन प्रोबेबली वंस मुशर्रफ, परवेज मुशर्रफ ने भी कहा था कि कारगिल जो था वो सियाचिन का बदला था। So, Mm. over to you, Sumit. Please tell us something more about yourself, and then So, we will discuss the CHA. okay जी। पहली बात, नमस्कार आप सबको, जय हिंद। जैसे बताया कि मेरा नाम सुमित है। मैं वैसे एक आईटी प्रोफेशनल हूँ, जर्मनी में रहता हूँ। एक लीडिंग आईटी कंपनी है हमारे देश में, उनके लिए काम करता हूँ। और मैं किताबें पढ़ता क्यों हूँ इंडियन मिलिट्री हिस्ट्री, क्योंकि मैं बचपन से एक आर्मी ऑफिसर ही बनना चाहता था। अनफॉर्चुनेटली ओएल क्यूज नहीं थे, ऑफिसर्स लाइक क्वालिटीज थे नहीं तब। एक इंट्रोवर्ट बच्चा
जो कि who was not allowed to make his own decisions, use his common sense, his various things. So he was not expected to clear that. खैर, in any case, मैं आर्मी तो ज्वाइन नहीं कर पाया, पर मेरा शौक कभी खत्म नहीं। So it was in 2002, even before that, I started reading Operation Blue Star, a book by General Brar, Operation Mhm. Blue Star. It was, I think, in 1996 or something. I didn't even know English properly and I could not make out most of it, but I kept trying to read it. फिर उसके बाद चलो ग्रेजुएशन हो गई, थोड़ा नौकरी वोकरी में लग गए, पर 2002 में आई पिक्ड अप माय फर्स्ट प्रोफेशनल मिलिट्री हिस्ट्री बुक and I have been reading since then. Now, there is one book that I'm reading all the time. There is the first thing which goes into my bag when I go anywhere is a book. My passport would go next, my book would go first. So that's how it goes. खैर अब पढ़ते पढ़ते फिर मेरे को मौका मिला कि मैं इंडियन डिफेंस रिव्यू मैगजीन के लिए लिखूं। एक्चुअली मैंने जो पहली दो किताबें ली थी वो लांसर पब्लिशर्स से ली थी। तो कैप्टन भारत थे पहले। अनफॉर्चुनेटली Mhm. 2014 में कैंसर से उनकी डेथ हो गई, पर ही वॉज पायनियर ऑफ स्ट्रेटेजिक थिंकिंग कल्चर इन इंडिया। Mhm. He was the first one who came up with the idea of Indian Defence Review जब 1989 के आसपास जब उन्होंने पहला इंडियन डिफेंस रिव्यू का एडिशन आना था, almost everybody was opposing. Even government was opposing. The day the magazine was to hit the stall, a day before that, Mhm. people from Raw was in his office. Wow. And yeah, people from Raw External Affairs Ministry were in office asking, persuading him not to go ahead with this, but Not he to go did. ahead. And he started a culture which was confined to only South Bloc. और एट द मैक्स जो आईटीएस से है, इंडियन डिफेंस स्टडीज इंस्टीट्यूट इधर ये दिल्ली में, सिर्फ Mm. आईटीएस से है जो गवर्नमेंट का बनाया हुआ एक थिंक टैंक है। उसके अलावा कोई प्राइवेट थिंक टैंक कल्चर हमारे देश में था ही नहीं। सो आईडिया वाज द फर्स्ट वन। उससे पहले एक पुष्पेंद्र एक थे एयरफोर्स ऑफिसर रिटायर्ड, आई बिलीव, उन्होंने उनकी मैगजीन थी वायु, बट दैट वाज रिस्ट्रिक्टेड टू ओनली एयरफोर्स। Air Force. इंडियन डिफेंस रिव्यू was covering everything, Mhm. everything, anything that was related to strategic defense of India. It could be covered under IDR. So it could be Army, Air Force, Navy, Coast Guard, BSF. It could be even strategic reserves like oil. It could be fake currency, counterfeit currency, which was eroding India's economy. Fine, that was covered. So he covered a wide range, and it was a holistic approach to bringing strategic एनालिसिस कल्चर टू हाउस होल्ड। Mhm. जो कभी साउथ ब्लॉक और आईडीएस से में होता था वो उसको घर घर ले गया, मतलब जो भी उसको सब्सक्राइब करता था मैगजीन को, मतलब Mhm. इट रीच्ड एवरी नूक एंड कॉर्नर। इट वाज द और गाय वाज उस ब्रिलियंट। उस समय ऑनलाइन भी नहीं था ये। हाँ जी, हाँ जी, तब पहले तो ये सिंपल मैगजीन थी जो हम्म। साल में सिर्फ 4 एडिशन आते थे और आपको हम्म। सब्सक्राइब करना पड़ता था। और उसके बाद फिर ये ऑनलाइन हो गया। तो ऑनलाइन हुआ करीब आई थिंक 2008 10 के पास ऑनलाइन हुआ। ऑनलाइन हुआ था, तो हाँ। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। तो he was very nice guy. He encouraged me to read. He हम्म। encouraged me to write. So in a way, whatever I know or whatever I aspire to be, he has been the main reason behind it because he was always inspiring me, pushing me. ग्रेट। He was ग्रेट। very good. सो Unfortunately, we lost him. या, I mean, just now we were discussing behind the scene that, yeah, everything has a, or everyone has a, in date अरे or हाँ, expiry date. हाँ, how So, we met. Sorry. I just want to add how we met. So it was during pandemic. अच्छा, माफ कीजिएगा, मैं हिंदी अंग्रेजी स्विच होती चलती है that's perfectly थोड़ा fine. सा। तो 2000 जब ये पैंडेमिक ये कोविड आया था तब एक व्हाट्सएप ग्रुप में मेरे को भी ऐड किया था। तो एक जो मेजर आगा अमीन है, ही इज अ फैबुलस हिस्टोरियन, Hmm. फैबुलस। मतलब पाकिस्तान की सॉइल से जो कुछ अनबायस्ड Not हिस्टोरियन so है मुch, उनमें, not so much नॉट सो, unbiased. आई गेट आई एग्री, क्योंकि पाकिस्तान में रहते हुए एक मुसीबत है कि कोई इंसान कितना भी पढ़ लिख जाए, वो Um, कितनी ही किताबें क्यों ना पढ़ ले, वो कितनी भी दुनिया क्यों ना घूम भारत ले, के प्रति वो स्टिल bias. एक सर्टन बायस है। अब
शायद हाँ वो इसलिए भी है क्योंकि वो अपने देश में इतनी मार खा चुके होते हैं कि उनको वो लगता है कि सारी दुनिया ही ऐसी है। जस्ट टू ऐड वो मुझे दिखा था वो असल उत्तर का वॉर, जब टैंक वॉर जो हम लोग डिस्कस कर रहे हम्म, थे उस ग्रुप में, और हम्म, उसके बाद ही मेरा उनसे अच्छा बहस हुआ था। अच्छा। तो नहीं, उसके असल बाद ही हालांकि असल उत्तर पे जो मैंने सबसे पहला अच्छा डिटेल्ड एनालिसिस पढ़ा था वो आगा अमीन का ही था। वो हम्म, किसी एक वेबसाइट पे पड़ा हुआ था, और मैं सच बता रहा हूँ कि वो डॉक्यूमेंट जो पड़ा हुआ था ना, बिल्कुल बेसिक, मतलब आप मान के चलें कि जरा सा भी फ्लैशी नहीं। आज के टाइम पर अगर इतनी इंफॉर्मेशन कहीं पे पड़ी हो ना, तो पता नहीं कितने ग्राफिक्स लगे हैं उसके साथ, बट दैट वाज क्लीन बेसिक, हाँ जैसे आपने टाइपराइटर से टाइप किया हो, बिल्कुल वैसे हाँ, पड़ा हुआ था। वो मैथ्स उनके बहुत डॉक्यूमेंट, अच्छे होते थे। हाँ, मैं तो है ही अच्छे, पर जो बेस, मैं क्यों बता रहा हूँ कि एकदम बेसिक फॉन्ट टाइप और फॉन्ट साइज में था वो उनका आर्टिकल, ये क्योंकि ही ऑलवेज फोकस ऑन क्वालिटी, हम्म, नॉट द पैकेजिंग। उनके जो एनालिसिस होते हैं एकदम स्पॉट ऑन, एकदम स्पॉट ऑन होते हैं। उनकी जो एजम्पशन होती है एकदम स्पॉट ऑन होती है। चलो मान लेता हूँ कि कहीं ना कहीं उनके अंदर का बायस कहीं बीच में आगे आ जाएगा। उनको ये लगता है कि क्योंकि पाकिस्तान आर्मी सेकंड ग्रेडेड और थर्ड ग्रेडेड, उनको लगता है हिंदुस्तान की आर्मी भी वैसे। हाँ उनको लगता है ये कि राइट, वो मैं इसलिए वो कहते हैं ना, भुक्त भोगी जो है, तो उसको लगता है कि सारी दुनिया ही ऐसी। हम्म, उनको लगता है कि पाकिस्तान आर्मी में हुजूर का इकबाल बुलंद हो, सारे जूनियर ऑफिसर ये कर रहे हैं, ये उन्होंने हाँ, चैटबुक पे देखा है। लिखा था, है ना, हम्म, कि हुजूर का इकबाल बुलंद हो, सारे जूनियर ऑफिसर यही कर रहे होते हैं, चाहे वो मेजर हो चाहे वो लेफ्टिनेंट जनरल हो। तो हम्म, उनको लगता है कि इंडियन आर्मी में भी यही हो। नहीं भाई, इधर ये नहीं हो रहा है। इधर 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 चैलेंजेस कुछ और हैं, पर ऐसा नहीं हो रहा है जैसा तुम्हारे वहां हो रहा है। अब वो जो एक बायस है, प्रोबेबली वो इतना भुगत चुके हैं ना, उनको लगता है कि सब जगह ये एक अनफॉर्चुनेट बात। अच्छा, आपको बैकग्राउंड नॉइस तो नहीं आ रही? नहीं, ठीक है। नहीं, गुड। अच्छा जी, तो अभी हाँ, उस उन ग्रुप पे हम मिले थे, और वो रवि रिकी, एक इंडियन ऐसे एंथुजियास्ट थे जो रफली 1980s में, अर्ली 1980s में जो अमेरिका चले गए। उनकी कुछ किताबें थी, 1984 द वॉर वाज नॉट, कुछ कुछ किताबें थी उनकी बहुत अच्छी, पर वो हम्म, फिर अमेरिका चले गए। उसके बाद उन्होंने टोटली बाय बाय कर दी। रवि रिकी और ये अपना आगा, इन दोनों ने मिलके ही वो बैटल ऑफ असद उत्तर पे डॉक्यूमेंट लिखा था। इट वाज फैबुलस डॉक्यूमेंट। उसमें हम्म, उन्होंने अच्छे से बता रखा था कि क्यों पाकिस्तान आर्मी, मतलब उनका जो असद उत्तर वाला ऑपरेशन था, वो फेल फेल हुआ। गया। इट वाज ब्लडी गुड, बहुत अच्छा डॉक्यूमेंट था। मतलब मैं आई रेड इट ये बैक, आई थिंक 2002-3 में, सो तब मैंने। कमिंग बैक टू आवर टॉपिक, सियाचिन। सियाचिन ऑपरेशन मेघदूत। हाँ जी। सो यू सी, मैंने जैसा कि कहा सुमित कि योर हिस्ट्री इज योर डिफाइंड बाय योर जियोग्राफी। हम्म। फर्स्ट थिंग आई वुड लाइक यू टू टेल अस कि क्यों ऑपरेशन मेघदूत पे उतनी बात नहीं होती है, क्यों? मतलब नॉट ओनली ऑपरेशन मेघदूत, देयर वर मेनी ऑपरेशंस, बट अभी हम ऑपरेशन मेघदूत को लेकर हैं कि ये कैसे शुरू हुआ, और कहाँ तक ये पहुंचा है, बस एंड probably this is the longest operation in the world military history which is still continuing 31 years. जो आपका पहला क्वेश्चन अच्छा, था ना, उसका 41, जवाब दिया। सॉरी, आई स्टैंड 40, करेक्टेड, एग्जैक्ट। 41, 40। 41 years. जो आपका पहला क्वेश्चन है ना, कि हम्म, क्यों इस पे ज्यादा बात नहीं होती, उसका आंसर ये है, because it is a 41 years long operation. हम्म, It has become business as usual. न्यू नॉर्मल। न्यू न्यू नॉर्मल जो शायद 35 साल पहले नॉर्मल हो गया था, वो न्यू नॉर्मल तभी डिसाइड हो गया था कि अब ये तो इट्स पार्ट ऑफ लाइफ। हम्म, ओके। राइट, सो इसलिए उस पर ज्यादा डिस्कशन ही नहीं होती। वो तब भी डिस्कशन होती है जब वहां पर कोई अ, बर्फ में का वो तूफान आ जाए, लोग दब जाएं, हाँ, कोई मतलब कुछ एवलांच आ जाए। एवलांच वगैरह आ जाए, तब ठीक है। अदरवाइज वी ट्रीट इट, हाँ ठीक है, वहाँ बंदे डिप्लॉयड, वी डू नॉट इवन केयर टू नो कि वहां पर लोग किस हालत में रहते हैं। किस हालत में है, हाँ। राइट, 30-30, 13,000 फुट की ऊंचाई, 17,000 फुट की ऊंचाई, -30 बाईस, टेम्परेचर, -40 टेम्परेचर, द हाइएस्ट टॉप इज 21,000, ऑलमोस्ट 21,800 समथिंग, बानों 22,000 बानों ऑलमोस्ट। बानों And yeah, and Harish Kapadia, I think he's a avid mountaineer trekker. और उन्होंने जो है, उन्होंने उनका एक आर्टिकल में पढ़ रहा था हिमालयन जर्नल में
ट्रैकिंग का है और बॉम्बे ट्रैकर्स ग्रुप माउंटेनियर्स ग्रुप के होते वो उन्होंने आई गेस इट वाज 96 और 2004 समटाइम ईयर आई एम मिसिंग लास्ट उन्होंने जो एक्सपेडिशन किया था या नॉन मिलिट्री एक्सपेडिशन जो सियाचिन में हुआ था वो उनके लीडरशिप में हुआ था तो he has written a very detailed account of that तो उन्होंने भी हाँ यही पर बोला वो था कि क्या, yeah it has become a new normal sort of हाँ मैं थोड़ी सी सड़क की लैंग्वेज यूज कर लूँ या नॉर्मल hmm. लड़कों की लैंग्वेज, इट हैज लॉस्ट इट्स सेक्स अपील, okay राइट, बिकॉज इट हैज लॉस्ट इट्स चार्म। क्यों? अभी जैसे अ, अभी ऑपरेशन सिंदूर मतलब वी डिड hmm. एक्सीडिंगली वेल, पर जस्ट इन केस मान लीजिए ज्यादातर जो टीवी पर हैं मेजर गौरव आर्या, इनको लगता है 6 महीने में कुछ होगा, दे वुड बी समथिंग बिग। I don't think so आई डाउट नहीं होगा। मतलब sorry to put water on public's hopes and fires but I don't think so नहीं, कुछ नहीं होगा। वाई? बिकॉज जैसा मैं पहले कह रहा था ना, जब हम इससे पहले बात कर रहे थे कि वी जनरली लुक एट द नेक्स्ट वॉर विद रेफरेंस टू अवर प्रीवियस previous वॉर, war राइट, वी yeah टेक अवर क्यू फ्रॉम द प्रीवियस वॉर। अनफॉर्चुनेटली ये माइंडसेट रहता है, क्योंकि हम जब भी अगर बात करें कारगिल में हमने ये किया था, तो अगर दोबारा कारगिल हो जाए तो हम वही नहीं भैया, दोबारा कारगिल होगा हम वैसा नहीं करेंगे, वी विल फाइट इट आउट इन अ डिफरेंट वे, वी मस्ट hmm. फाइट इट आउट, राइट। और अगर मान लीजिए पाकिस्तान वो गलती करता है दोबारा कारगिल बोले, तो वो बेवकूफ है, हमें नहीं होना है। वो अपनी नहीं गलती दोहराएंगे, हमें नहीं। and Sumit every moment the paradigm is changing I remember my grandfather used to say कि हर पल संक्रमण का काल है समय परिवर्तनशील है वो बदलता रहता है अगर आप समय के साथ नहीं बदले तो आप गए इररेलेवेंट। irrelevant हो जाएंगे तो यस 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 यस। पाकिस्तान वो गलती करता रहा है हमने नहीं किया है हाँ जी, और हमें करनी भी नहीं, और हमें हमें करनी भी करनी। नहीं है और शायद इसीलिए ये हम लोग ये डिस्कशन ये विमर्श कर रहे हैं अच्छा चलिए, ये आपने अच्छा किया, लेट्स गो बैक टू, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली मेरी आदत है, मैं बात में से बात निकाल के पता नहीं कहाँ पहुंच सकता, तो अगर कभी ऐसा हो तो प्लीज ब्रिंग मी बैक टू द पॉइंट। श्योर तो सियाचिन की हम बात कर रहे थे, तो सियाचिन पहला क्वेश्चन ये हो गया कि भाई इट हैज लॉस्ट इट्स चार्म, और whatever you call it importance, why it is not being debated, because it became a new normal 35 years ago. People stop thinking about it, we only think when there is an avalanche, when there is somebody stuck under the tons of ice। जब कोई एक सोल्जर वहां होता है, मौत से जूझ रहा होता है, तो हम एकदम से भावुक हो जाते हैं, जैसे वो हॉस्पिटल में जाए, वो ठीक हो जाए या वो चला जाए, हम 10 दिन में हम भी ठीक हो जाते हैं, तो इसलिए इस पे कोई बात नहीं होती। ऑपरेशन पवन पे ऑनेस्टली स्पीकिंग nobody wants to talk about it, या nobody wants to talk about it। वो एक हमारी ही आर्मी की एक, या हमारी पॉलिटिकल, नॉट आर्मी, हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप की एक बेवकूफ़ी थी, जिसको मिस आर्मी ने भुगता। भुगता ठीक, तो मिसकैलकुलेशन था वो इसलिए, हाँ, इसीलिए अनफॉर्चुनेटली जो लोगों ने उसमें पार्टिसिपेट किया है वो लोग भी उसके बारे में बात करना चाहते हैं। बाकी वो इतना तो ग्लोरियस चैप्टर नहीं है, जैसे 62 के बारे में हम ज्यादा बात नहीं करते। ज्यादा बात नहीं करते हैं ठीक है, हम बट 65 या 71 की बात करते हैं, हम कारगिल की बात करते हैं, हम सियाचिन की बात करते हैं, हम आईपीकेएफ जैसे एग्जिस्ट नहीं करता, हम भूल जाते हैं। सेम वे 62 एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि वो ग्लोरियस नहीं है ना। हाँ हालांकि बट वही चीजें हमें दैट्स ज्यादा डिस्कस करनी चाहिए ताकि लेसन हाँ मिले। दैट्स वेयर माय पॉइंट इज कि भाई मेरे जो ग्लोरियस है जहाँ पे वी बिकम विक्टोरियस वी केम आउट यू नो विद ऑल ब्लेजिंग गन्स तो हम्म, वहां पे तो अगर हमने कोई गलती भी की है तो वो हमारे विक्ट्री लैप में छुप जाता है छुप गई। ठीक है हमें बेसिकली बात वहां करनी चाहिए जहाँ की हमने हमारा पहला कदम ही गलत रहा 62 का बट अभी हम उस पर भी आएंगे क्योंकि उस पर भी आएंगे, ये चलो पह, कभी। ये पहला भले ही है ये अंतिम नहीं है ठीक है क्योंकि आइडिया यही है कि हम भारत के सैन्य इतिहास को समझें भारत ने जितने भी युद्ध लड़े हैं जितने भी ऑपरेशंस किए हैं हम उसके उसके लाइट में उसके उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भारत के स्वतंत्र भारत के अगर ये कहें तो ज़्यादा उचित होगा उसके इतिहास को समझें
कि आज जो भारत की सेना है जिस स्थिति में है वो वहां हम्म, तक कैसे पहुंची। तो अब हम आते हैं फिर से लौट के 84 पे, सियाचिन। कि 84 को हमारा वो कदम हमने उठा लिया डिसिसिवली। उसके पहले हम्म, क्या क्या इंडिकेटर्स हमको दिखे, हमने वो 84 में ऑपरेशन मेघदूत का निर्णय लिया क्यों, और किस तरह से हमने पाकिस्तान को उसके ही रेस में पछाड़ा। हाँ। तो हुआ क्या कि सियाचिन जब हम 71 की वॉर खत्म हो गई, तब जब मैच ड्रॉ हो रहे थे, क्योंकि लाइन ऑफ कंट्रोल में थोड़ा सा फेरबदल हुआ। तो लाइन ऑफ कंट्रोल एक ऐसी चीज है जिसमें फेरबदल हो सकता है, वो इंटरनेशनल बाउंड्री नहीं है। हम्म। लाइन ऑफ कंट्रोल में अगर मान लीजिए हमने कहीं पर बढ़त ले ली और हमने कहा कि नहीं, हम नहीं छोड़ेंगे क्योंकि हमारे फायदे में है, तो ये पॉसिबल है। ठीक, हम्म। आपको सिर्फ दूसरी साइड को अग्री करवाना है, इट इज डन। तब लाइन ऑफ कंट्रोल जब पूरी ड्रॉ हो गई तो पॉइंट 9 एनजे 9842, हम्म। उसके बाद ये बोला गया कि थेंस नॉर्थवर्ड कोई डिमार्केशन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो इनहेबिटेड नहीं है इलाका। तो वहां इनहॉस्पिटेबल पर भी है। क्या डिमार्केट करना है, हम्म। इनहॉस्पिटेबल है, वहां इंसान सांस लेना मुश्किल है, तो फिर उसको क्या डिमार्क करना है, उसको छोड़ देते हैं। डिमार्केशन इट सेल्फ वुड हैव बीन अ चैलेंज, तो उसको हम्म। छोड़ दें, फाइन, छोड़ दिया। पर बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा पाकिस्तान को थोड़ा सा और सोचने में। एक्चुअली 1971 की जो डिफीट थी उसके कारण कुछ, जैसे कुछ इंस्टेंस होते हैं ना, यहाँ पे लाइफ चेंजिंग एपिसोड्स होते हैं, राइट। तो हम्म। 71 वाज वन ऑफ दोस। सो 71 के बाद पाकिस्तान में दो चीजें क्लियर हो गई। एक, दे हैव टू गो न्यूक्लियर, यस। नो मैटर व्हाट। हम्म। ठीक, ताकि हिंदुस्तान हमसे दोबारा ऐसा ना कर पाए, वी हैव टू गो न्यूक्लियर। दे न्यू दैट दे डिड नॉट हैव द कैपेसिटी, बट दे स्टिल वेंट अहेड विद इट। हम्म। ठीक, हम्म। सेकंड, कि इंडिया के साथ स्कोर सेटल करना हाँ, ट्रेडिशनली तो है। वो जीत नहीं सकते हैं तो। हाँ, अब किस जैसे पाक इन्होंने बांग्लादेश में बंगाली रेबल्स को साथ दे के इन्होंने हमें ऐसा धोखा करके ब्ला हम्म। ब्ला, दे कन्विंस देमसेल्फ कि हाँ जी, हम्म। हिंदू बनिया हमसे लड़ाई में तो जीत नहीं सकता, तो उसने ऐसे पीछे से छुरा घोंप के और बंगाल को अलग कर दिया, ब्ला ब्ला। तो दे डिसाइडेड कि हाँ जी, वी विल गो द सेम वे, और हम कोई भी मौका नहीं छोड़ेंगे जहां पर हम हिंदुस्तान को एक कट न लगा सके। सो कट बाय डेथ बाय थाउजेंड थाउजेंड। कट्स। या। अब वो स्ट्रेटेजी अपनाते हुए पहले कुछ साल तो कोई दिक्कत नहीं हुई। पहले कुछ साल तो वो शांत रहे, पाकिस्तान में भी जिया उल हक का मार्शल लॉ लग गया, और जिया उल हक को कोई, इट वाज फर्स्ट फ्यू इयर्स वर रियली डिफिकल्ट, क्योंकि कोई उसको तवज्जो भाव नहीं नहीं दे रहा देता। था, हम्म। वो भाव नहीं देता था, वो डिक्टेटर था, किसी को पाकिस्तान की जरूरत नहीं थी। फिर रशिया ने उस पर एहसान किया, रशिया ने इन्वेड कर दिया अफगानिस्तान। अफगानिस्तान को। जैसे ही अफगानिस्तान इन्वेड किया, थोड़े टाइम बाद पाकिस्तान रेलेवेंट हो गया। तो अब जियोग्राफी। अमरीका, ज्योग्राफी, अब हम्म। ज्योग्राफी और प्लस, देखिए सिर्फ ज्योग्राफी ही नहीं, क्योंकि ज्योग्राफी तो फिर ईरान की भी थी। ठीक है, ज्योग्राफी, अगर कोई जो ऊपर तुर्कमेनिस्तान वगैरह जो नॉर्दर्न बॉर्डर है अफगानिस्तान का, हाँ, उधर बट भी थी ज्योग्राफी। नहीं, but there are two things. I was discussing with another Pakistani gentleman when I used to be active on Facebook. There was one gentleman, Omar Khan. He told me that in diplomatic circle, Pakistan is referred as the beautiful whore of South Asia. ओके, दैट्स ग्रेट। That was the first time I had heard this somewhere in 2011, 2012, sometime. ओके, गुड टू नो, गुड टू नो, if that is the case, because they presented themselves, they let Hmm. people uh, Use them. use them, and they bloody very well knew that they are selling themselves, Yes, right? they Right, are तो doing फिर it two they should days. not be, बिल्कुल। फिर ये ऑब्जेक्शन नहीं होनी चाहिए कि जी हमारी हमारी मदद ली फिर हमें छोड़ के चले गए, तुम्हें वो थोड़ी लेने का। ठीक है, अभी अफगानिस्तान में तुम्हारी मदद की जरूरत थी, देवर गिविंग यू मनी, देवर गिविंग यू वेपन्स, देवर टर्निंग अ ब्लाइंड आई ऑन योर न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन। अब जरूरत पूरी हो गई, बाय बाय, खत्म। मतलब वर यू एक्सपेक्टिंग अमेरिका टू मेक पाकिस्तान एज 51st स्टेट? इफ यू आर, देन यू आर एन इडियट। तो अब क्या, कमिंग बैक टू सियाचिन, तो जब पहली बार आई थिंक जिया उल हक को भी एक, नहीं वो दैट वाज आफ्टर सियाचिन, जिया उल हक के साथ आराम से अमेरिका काम करते करते अफगानिस्तान में लड़ता रहा, एंड दे केप्ट अ ब्लाइंड आई टुवर्ड्स AQ खान्स न्यूक्लियर नेटवर्क, Hmm. और जो प्रोलिफरेशन पाकिस्तान कर रहा था उसके बारे जो में भी उन्होंने स्मगलिंग कोई ज्यादा, करके जो हाँ, स्मगलिंग करके ला रहा था,
टेक्नोलॉजी और मटेरियल। तो दे केप्ट इट ब्लाइंड आई कि चलो छोड़ो छोड़ो छोड़ो, क्योंकि उनको पाकिस्तान की जरूरत थी। फिर 1984 के आसपास अब हुआ क्या कि उससे 1984 से पहले हमारे कर्नल बुल कुमार थे, एक माउंटेनियर थे, और बुल उनका पेट निकनेम नेम था। था। जैसे निकनेम आईएमए में सबका निकनेम हो जाता है, हम्म एनडीआईएम में तो उनका निकनेम बुल था, तो ही वाज फॉन्डली कॉल्ड बुल कुमार। So Colonel Bull Kumar, he was sitting in some, he was fond of mountaineering। उन्होंने बहुत सारे ऐसे माउंटेन पीक्स क्लाइम किए हुए थे, तो उनका एक अपना सर्कल था। एक माउंटेनियरिंग क्लब है आई थिंक देहरादून में, जहाँ वो बैठे हुए थे। तो उनको कोई उनका पुराना जापान वगैरह का कहीं कोई फॉरेनर माउंटेनियर मिला, तो वो दे दे मेट ईच अदर लाइक ओल्ड पैल्स, तो बता रहे थे। तो उन्होंने बोला कि मैंने वो वाली पीक आई 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 कॉन्कर्ड दैट पीक। एंड ही सेड हाउ डिड यू कॉन्कर, बुल कुमार सेड हाउ डिड यू कॉन्कर दैट, क्योंकि उसकी तो इजाजत मिल नहीं सकती, मतलब वी आर नॉट गोइंग टू अलाउ। ही हम्म सेड हाँ, पर मैंने तो पाकिस्तान से इजाजत ली, मैं उधर से चला गया। तो बुल कुमार सेड इवन दे आर नॉट सपोज्ड टू गिव यू परमिशन, नोबडी इज सपोज्ड टू गो देयर। तो उन्होंने कैसे करी, कहता मैं तो गया हूँ। एंड देन ही शोड देम अ मैप। हम्म अब उस मैप में एंजिन 9842 से एक डायरेक्ट लाइन जा रही थी सीधा हमारे काराकोरम को टच करते हुए। हम्म होना क्या चाहिए कि ये जम्मू कश्मीर का मैप है, ये एलओसी है, 9 NJ 9842 पे रुक जाए। ओके। आई वाज थिंकिंग कि ठीक। अगर मैं मैप मैप खोलूं, बट लेट मी सी, देखते हैं। हाँ, अगर मान लीजिए बाद में ऐड हो जाए तो स्क्रीन हम्म पर आ जाएगा, राइट। हम्म तो 9842 तक वो लाइन हमारी लाइन ऑफ कंट्रोल रहेगी। उस मैप में वो 9842 से एक डायरेक्ट लाइन सीधा जा रही है, जो हमारे काराकोरम लद्दाख के पास काराकोरम। काराकोरम को अटैच है, राइट। हम्म तो ये सारा इलाका इधर वाला, इंक्लूडिंग सियाचिन ग्लेशियर एंड ऑल दोस पीक्स, इट वेंट टू पाकिस्तान शोइंग एस। हम्म तो अब कर्नल कुमार गॉट अलर्टेड एंड ही ड्यूली रिपोर्टेड इट कि भैया ये इस तरीके से कुछ चल रहा है। हम्म तो if they are distributing these maps to the world, showing this entire area as part of Pakistan controlled territory, Pakistan occupied J&K, then tomorrow, you know, and they are actually allowing people to for mountaineering expeditions in that area, which they should not. They are kind of claiming that land. एंड हम्म टुमारो दे विल स्टार्ट जस्टिफाइंग इट कि जी हम तो इतने टाइम से हमारे कंट्रोल में है, सारे मैप्स भी हैं, हम तो लोगों को भेज रहे हैं, सो इंडिया हैज नो लीगल स्टैंड पॉइंट। तो खैर, जब कर्नल बुल कुमार ने रिपोर्ट किया तो कि दे सेंट सम एक्सपीडिशंस, कर्नल बुल कुमार एक्चुअली वेंट टू सियाचिन ग्लेशियर, ही सॉ तोरो रिच। वो वहां तक गए, वहां उन्होंने देखा कि टेलटेल साइन पड़े हुए थे, जो पाकिस्तान से के बनी हुई, मान लीजिए कोई सिगरेट की डिब्बी है, कोई माचिस की डिब्बी है, कुछ और कुछ कैन है कोई खाने का, तो वो वहाँ पड़े हुए हैं। तो पता लग रहा है कि कुछ लोग हैं जो पाकिस्तान का की तरफ से आए, क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान का बना हुआ सामान यूज किया और डब्बे बब्बे वहाँ फेंके। हम्म तो जब इस तरह की एक्सपीडिशन उन्होंने दो तीन की, तब एक एक्सपीडिशन के दौरान कर्नल गुल कुमार ने एक इंटरव्यू में बताया था कि पाकिस्तान का एक हेलीकॉप्टर आया, ऊपर उसने होवर किया और उसने नीचे भूसे का एक ढेर फेंका। Now, it was like telling Colonel Bul Kumar and others that we know you are here। तो इंटेल आनी शुरू हुई कि पाकिस्तान आर्मी यूरोप में हाई ऑल्टीट्यूड क्लोथिंग की परचेज कर रही है, हम्म सारे गियर, स्कीइंग व्हाटएवर, लाइफ सेविंग गियर्स। देन वी रियलाइज्ड कि हाँ जी, ये दे आर अप टू समथिंग। हम्म देन वी डिसाइडेड, नाउ कटिंग द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, देन वी डिसाइडेड कि हाँ जी, ये वी हैव टू outsmart them in their own game, and we have to be there before they are there, हम्म because once somebody is on those high peaks in Siachen, it is very difficult to dislodge them, क्योंकि वो टेरेन ऐसा है। हम्म ऊपर से उस टेरेन पे कभी कोई गया नहीं है। अभी तो हम जाएंगे वहां, पिकेट लगाएंगे, वी डिड नॉट इवन नो हाउ वुड वी मेंटेन इट। हम्म हेलीकॉप्टर वहां जा भी पाएगा कि नहीं, क्योंकि एयर इतनी थिन है। वो कितना सामान ले जाएगा, लॉजिस्टिक्स चैलेंजेस कैसे होंगे, अगर कोई कैजुअलिटी हो गई तो उसको निकालना कैसे वे कैसे होगा, ये और किस किस तरीके की बीमारी होंगी। हम पता है हाई ऑल्टीट्यूड है, तो वो हाई डिफिकल्ट। ऑल्टीट्यूड के कारण जितने भी होते हैं वो सारे हो सकते हैं, निमोनिया एक्सेट्रा वो सब हो सकते हैं। वो हम्म उनको उनके साथ कैसे डील करेंगे, हाई और कब तक एल्टीट्यूड करेंगे। AMS, high altitude sickness, HAPO, and हाँ, all those things. Yes. तो ये सारी
इनके साथ कैसे डील करेंगे और कितनी देर, क्योंकि जब इनिशियली हम शुरू गए थे तो हमें नहीं पता था कि ये कब तक चलेगा, so we just wanted to be there before Pakistanis get there, Hmm. and we beat them by 1 day. Probably a month because 13th No, April, yeah, 13th April and we reached there. We occupied Salto Range, and and their plan was in May sometime. okay, then probably my Because memory is not serving me yeah, right. I was reading Fine. this. I was reading this, and not only this, this Ramesh Kulkarni's book. Okay, then probably you are right, because Yeah, last time I studied long Siachen, back. it was long ago. Now, Uh, good thing what happened during last 10 years. Now, mm, I'll come to that later. तो उसके बाद हम सियाचिन पे, जो हम when we were on those ridges, Pakistan also tried to outsmart us, and they captured that Payat post at 21,000 feet, जिस पर ये बुक है सियाचिन 1984 yeah. 87, इट्स ब्यूटीफुल। तो उस पे हमने उस पे फाइनली 87 में भी डिसाइडेड दैट वी कैन नॉट हैव दिस थ्रोन, राइट, वी हैव टू Mm, गेट इट आउट। mm. तो वो ऑपरेशन इटसेल्फ इज Operation, एपिटम ऑफ ब्रेवरी, yeah, Operation इट्स Rajiv and Operation Rajiv and Operation एपिटम Vajra ऑफ Shakti. because at 21,000 feet you have to climb a ice wall, Hmm. and then you have to fight. When you are on top, your gun is jammed. AK-47 is not working. दो दिन Then you तो have to. इसीलिए 2 दिन तो इसीलिए अटैक नहीं कर पाए रात को। अच्छा, हाँ, ओके, तो इसी आप बताइए इसके बारे में कि आपने मतलब रिसेंटली पढ़ा है, सो यू हाँ, नो इट रिसेंटली बेटर। पढ़ा हुआ ये कि व्हेन ऑपरेशन राजीव जो है वो शुरू हुआ समवेयर इन हाउ शुड आई पुट इट इन अप्रैल अप्रैल एंड 87। तो ओके, हाँ, कैप्टन राजीव थे, उनके लीडरशिप में 6 लोगों की 8 लोगों की एक टुकड़ी भेजी गई कि जाके टोह लेके आओ कि हाँ क्या स्थिति है, एंड इफ वी हैव टू डू सम अटैक एंड सम ऑफेंसिव एक्शन। तो कायद पोस्ट उस समय जो कहा जाता था उसको, ऑलमोस्ट 21,000 ऑड फीट्स। तो वो सियाचिन ग्लेशियर से 1,000 फीट की ऊंचाई पे था वो। हम्म, एंड तो वो चढ़ने के लिए रस्सी और वो जो माउंटेनियरिंग में लगाते हैं आइस क्लाइंबिंग के लिए, वो आप लगा के रास्ता बना के आओ। सैडली ही वाज सीन। एंड अनदर थिंग इज कि उस समय अटैक्स रात को ही करते थे, प्रोबेबली अमावस्या को, क्योंकि अंधेरा होता था। तो आप हाँ, आपकी एक आपका मूवमेंट जो है दिख नहीं सकता है। हाँ, बट सैडली दुश्मन को इनकी टोह लग गई। सो ही वाज मार्टेड, वो हुतात्मा हुए। और उनके साथ 3-4 और लोग हुतात्मा हुए। एंड ये कुलकर्णी साहब जो हैं, जब भी जाते थे एवरी डे ही यूज टू गो, every day morning he used to go to Siachen and come back to the base camp in the evening. By 2:33, the no flying time was observed every कट evening. ऑफ, Cut off time कट ऑफ। was okay. So he used to come back. तो जब भी जाते थे तो उनके सूबेदार मेजर जो थे वो बोलते थे कि साहब जी बॉडीज लानी है। एंड -30 -40 में बॉडीज तो डिसइंटीग्रेट हो नहीं सकती हैं। तो आप सुबह शाम अपने साथियों की लाशें जो हैं वहां देख रहे हैं। एंड दैट वाज वेरी नो वेरी बैड इन अ सेंस कि आपकी सेना का मोराल जो है वो डाउन हो रहा एब्सोल्युटली। है। एंड हम वी टेक प्राइड इन सेइंग कि वी डोंट लीव आवर डेड, इवन वी डोंट लीव आवर डेड बिहाइंड। तो उस राजीव की बॉडी को लाने के लिए ये ऑपरेशन राजीव प्लान किया गया। एंड दैट प्लानिंग टुक ऑलमोस्ट 25-26 days. So 29th April was probably the date. I'm missing dates, but and 26th May or 26th May was the first attack when Rajiv went, and 26th June. Yeah, it was 26th June uh, when we went for Kayad post. तो 23rd को हम लोगों ने प्लान किया
तो उनका नाम वी से था। I'll put in the caption, मुझे देखना पड़ेगा। तो वो उनके लीडरशिप में ही वॉज प्रोबेबली अ मेजर। कंपनी का उन, मान। हाँ, उनके उनके उसमें जो है सो कि वो भेजा गया। लगभग 40 या 60 लोगों की टुकड़ी तैयार हुई। एंड इंडियन एयरफोर्स एंड इंडियन आर्मी का एयर विंग, they made almost 300 plus helicopter sorties to mm, make this operation possible, क्या बोलेंगे, सारा रसद पहुंचाने का। लॉजिस्टिक्स हाँ, लॉजिस्टिक्स for लॉजिस्टिक्स। logistics, for logistics. So 23rd night they went. 23rd night they couldn't find the ropes which Captain Rajiv had put. That night was gone. 24th night they again put the rope and reached the top. बट रात को ठंड इतनी ज्यादा हो गई थी कि इनके हथियार जाम हो गए, अच्छा। तो ये अटैक नहीं कर पाए। 25th was the same situation. Then Ramesh Kulkarni, next day on 26th, when he reached, he said, "You attack in the daytime." Vajinder, yes, मेजर वाजिंदर, उनके लीडरशिप में वो अटैक हुआ था। तो 25th को ही ऑल्सो वॉज इंजर्ड, उनको भी एक दो गोली लग गई थी। उसमें थे अपने हवलदार थे उस समय, शायद बाद में वो सूबेदार मेजर तक हुए, बाना सिंह। 12 से यस। 12 टॉप। दैट्स व्हाई इट इज 12 टॉप। हाँ, तो बाना सिंह जो है उन्होंने कहा कि देख लेते हैं। एंड दिन के लगभग 11-12 बजे अटैक शुरू हुआ और 20 लोगों को लेकर के बाना सिंह आगे बढ़े। इमेजिन एट 21,000 feet और 20,500 feet यू आर देयर, एयर इज रेरिफाइड। वेरी थिन। वहां पे आपको 1000, ऑलमोस्ट 1000 feet ऊपर चढ़ना है with all your guns and everything. So how much physically fit you have to be? That experience itself is beyond imagination. दुनिया के किसी आर्मी के पास वो एक्सपीरियंस नहीं है, सुमित। आई मीन, मैं भी जब आपकी बात करते करते मेरे को ध्यान आया कि कमर्शियल एयरलाइनर्स दे जनरली फ्लाई एट 35,000 या फीट 35 to 40,000 feet मैक्स। राइट। या तो मतलब हम उसके उनके आधे पे थे। क्रूजिंग ऑल्टीट्यूड के हाँ, आधे पे क्यों, हम उनके हाँ, क्रूजिंग ऑल्टीट्यूड के कम से कम 60 65 70% पर जाकर हम लड़ चुके हैं। लड़ एंड वी चुके हैव हैं। बीन कैप्चरिंग, वी हैव बीन ऑक्यूपाइंग दैट टेरिटरी फॉर सो लॉन्ग। कम से कम कितने 87 से आज कितने 38 साल हो गए ऑलमोस्ट। या 38 साल हो गए हमारी पूरा, अभी भी 4 बंदे उस लोकेशन पर खड़े हैं। हाँ, पाकिस्तान ने कुछ टाइम ट्राई किया एंड सितंबर में, आफ्टर दैट दे उसी गिव अप। उसी साल सितंबर में ट्राई किया था। तो उसके बाद भी गिव अप। हाँ, ऑपरेशन राजीव ये हुआ था। और उस समय मतलब इंडियन एयरफोर्स वाज इन नो पोजीशन टू, नॉट वेरी मच इन पोजीशन टू सपोर्ट लॉजिस्टिकली, क्योंकि बहुत कुछ श्रीलंका में बिजी था उस समय। ऑपरेशन पवन भी चल रहा था 87 में। और और इन एनी केस पता, इस इतने बड़े इस ऑल्टीट्यूड पे जाने के लिए कोई हेलीकॉप्टर वगैरह भी कोई सर्टिफाइड थे नहीं। कई बार तो ऐसा होता था और आज भी होता होगा कि हम्म, कभी कभी एक नहीं कई हेलीकॉप्टर सिर्फ। नहीं कई एक्सीडेंट्स भी हुए हैं, बट आप जो कह रहे हैं कि एक हेलीकॉप्टर सिर्फ एक आदमी को लेकर के या 20 kg वेट लेकर के वो फ्लाई किया है। नहीं, आप तो 20 kg तो बहुत बता रहे हैं आप। 5 किलो का जेरी कैन, हम्म, 5 किलो, हम्म, 5 लीटर का जेरी कैन केरोसिन ऑयल का, वो हाँ, वहां लेके किया होगा। कभी कभी सिर्फ चिट्ठियों के बंडल, हाँ, चिट्ठियों के बंडल ऊपर से ड्रॉप कर दिए, खत्म, और कुछ नहीं लाया वो। क्योंकि सिचुएशन ही नहीं है कि हेलीकॉप्टर कुछ और कैरी कर पाए। 5 किलो, हम्म, मतलब दैट इज काइंड ऑफ मोस्ट एक्सपेंसिव कार्गो एवर सेंट बाय एनीबॉडी। हाँ। और सबसे बड़ी बात है कि वहां पे आपको हर चीज, अगर पानी पीना है तो आसपास की बर्फ को आपको गलाना पड़ेगा हाँ, और वो भी फटाफट पी लो क्योंकि वो और दोबारा जम जाएगी। दोबारा जम जाएगी।
और उसको जो है, उसको मतलब उसको चलाने के लिए आपको केरोसिन केरोसिन चाहिए। केरोसिन चाहिए। मेरे को जब मैं प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड के साथ में था, काफ़ी टाइम मैंने उनके साथ ऐसे ही, तो क्योंकि मैं एंथुसियास्ट हूँ, आई लव इंडियन आर्मी, सो मैं अमेरिका में था तब मैंने देखा कि एक ना गार्ड चेंजिंग सेरेमनी होती है दिल्ली में। So हम्म, I got very excited and I thought, okay, this time I go there, I'll go and I'll take photos. So I went there, and somehow I got friend, I got close to them and I befriended with them, and I started visiting their office. I started speaking for them. So it was very nice 5 6 years, I would say. Even अभी मैं जाऊँगा बहुत सारे लोग होंगे जो मुझे जानते हैं. I can still go to them and I can still participate in their events. So प्रेजेंट बॉडीगार्ड से मुझे पता लगा कि उनका एक सेक्शन, यानी कि 12 लोग हमेशा ग्लेशियर पर रहते हैं। हम्म, सो 10 से 12 लोग प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड से हमेशा ग्लेशियर पर रहते हैं। हर आर्मी का हर जवान कम से कम अपने पूरे लाइफ टेन्योर में, अपनी पूरी सर्विस में एक टेन्योर 3 महीने का 3 महीने का। जरूर सियाचिन पे करता है। दूसरा कभी रिकमेंड नहीं किया जाता, पर अगर कभी कोई हो तो शायद किसी को दूसरा भी टेन्योर वहां देना पड़ जाए 6 महीने का, पर जनरली 3 मंथ्स एंड योर गॉन। चाहे वो ऑफिसर हो, चाहे चाहे जवान हो। अब जो उस उन बंदों ने मुझे बताया था कि वहां पर आप ये जो अपने ब्लैक इतने बड़े बड़े वो स्नो गॉगल्स। ग्लास स्नो गॉगल होते हैं, वो आप उतारते नहीं है, ना, क्योंकि अगर आपने वो ब्लाइंड, उतार दिए यू विल बी ब्लाइंडेड, क्योंकि यू वहां विल इतनी ब्लाइंडेड। रोशनी, इतनी तो, इतनी तेज धूप और रिफ्लेक्शन जो आता है। रिफ्लेक्शन इतनी ज्यादा है कि आप ब्लाइंड। सो व्हाई दे कंडक्टेड दिस ऑपरेशन, व्हाई दे वुड कंडक्ट ऑपरेशंस ऑन अमावस्या, क्योंकि चांद की रोशनी भी पड़ के इतनी ज्यादा लाइट कर देगी कि नजर आ जाएगा सब कुछ। हाँ, चांद की रोशनी भी वो तो चलो ठीक है, नॉर्मल यहाँ पर भी मतलब मीन सी लेवल पर भी नजर आ जाता है चांद की रोशनी में थोड़ा थोड़ा, वहां पर तो वो मैनीफोल्ड हो जाता है, क्योंकि वो मैनीफोल्ड हो जाएगा। रिफ्लेक्ट होती है, तो वो ऑलमोस्ट नाइस विजिबिलिटी। अगर धुंध नहीं है, अगर बादल नहीं है, यू कैन सी माइल्स। दैट पीपल आर ब्रिंग्स देयर। अस टू अनदर पॉइंट, समित, कि लॉजिस्टिक्स, कोऑर्डिनेशन बिटवीन एयरफोर्स एंड इंडियन आर्मी। एंड अब तो मुझे लगता है कि शायद एक बटालियन साइज रहती होगी सियाचिन पे। उस समय बहुत ज़्यादा होती थी तो एक कंपनी होती थी। शुरू में तो मुश्किल से 80 या 100 लोग गए थे पहले उसमें। तो आई मीन, आई रिमेम्बर इट वाज 87 और इन 89, आई वाज इन 9th क्लास। और शायद दैनिक जागरण था या आज था, हिंदी न्यूज़पेपर। उसमें एडिटोरियल में था कि सियाचिन पे अपनी सेना रखने का एक दिन का खर्च 3 करोड़ रुपए आता है। इन 89 इट वाज अ बिग डील, इट वाज अ बिग अमाउंट। आज हम इस स्थिति में हैं कि हम पैसे के बारे में नहीं सोचते हैं। बट श्योर, दोबारा ऐसा कोई ऑपरेशन लॉन्च करने का नौबत नहीं आएगी। ऐसा ऐसा कोई और टेरेन भी नहीं है। बट इमेजिन फॉर अ मोमेंट इफ वी हैव टू, अगेन redo all these things, what different could be done? बड़ा ही हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है। बहुत हाइपोथेटिकल है ये। और एक्चुअली मुसीबत ये है कि कारगिल सॉरी सियाचिन जैसा टरेन कोई और है भी कहीं नहीं है। नहीं, साइबेरिया प्रोबेबली, क्योंकि बट इट्स नॉट दैट मच ऑन that हाइट। high. It's not that high. And Siberia is livable. You know, people live there. छोटे छोटे गाँव के उसमें शक्ल में कहीं ना कहीं हैबिटेट है वो, राइट। वो ऐसा नहीं है कि वो इन वहाँ रह नहीं सकते आप, ऐसी बात है। अब जो सियाचिन पे रहना नहीं है, सियाचिन पे लड़ना है, सबसे लड़ना बड़ी है। बात। शुरुआत में जो 80 लोग गए थे ना, वो सिर्फ 80 या 100 लोग, जितनी भी छोटी सी जो गए थे, एक उनको वहां तक ले जाना वॉज अ हरक्यूलियन टास्क। यस। ठीक है, और ऊपर से वो वहां पर अपनी जगह पे पहुंच जाएं, ये भी, और वहां रहें 2 4 दिन, फिर उनको लॉजिस्टिक्स देना, मतलब इट वाज। आज हम रेट्रोस्पेक्टिवली बैठ के हम देख लेते हैं, पर उन लोगों ने कैसे किया होगा ये वही जानते हैं। बहुत ही हरक्यूलियन टास्क है ये, हम लोगों के लिए, आर्म चेयर जनरल्स के लिए बड़ा आसान है ये सोच लेना, हाँ। बट बहुत ही मुश्किल है ये एग्जीक्यूशन, उन्होंने कैसे किया। प्लस सेकंड, सियाचिन जैसा कोई और हमारे पास बैटल ग्राउंड नहीं है जिसके बारे में हम सोचें और फिर वी स्टार्ट हाइपोथेसाइज, start our hypothesis. It cannot be done.
पर अगर मान लेते हैं कि एक इमेजिनरी ऐसा ही सियाचिन जैसा एक और ग्लेशियर है हमारे पास, हम्म, जहाँ पर से चाइना या पाकिस्तान, प्रॉब्लम ये है जो मैं सोचता हूँ कि जो एनवायरमेंटल कंडीशंस जो सेट हैं ऐसे किसी भी बैटलफील्ड पर, they nullify the advantage you might have with technology. Like in Ops Indoor, what we did, right? We हम्म, accomplished so much with so less resources because of technology, ओके, right? It happened all the way throughout our history, not Indian history, throughout the history of mankind. You know, हम्म, टेक्नोलॉजी with यस, advancement in technology, we could achieve a lot with इन lesser resources than what we achieved, say, 200 years ago with more यस, resources. So it यस, happens. That's the benefit of technology. But at that level, the technology's effect is nullified because uh, either you put robots there, either you put drones, okay, you may use, but no, not that effective. First, it's too rarefied air, it's freezing temperature. या You ड्रोन्स have to विल have नॉट बी सक्सेसफुल. somebody you have to have somebody on the ground. अच्छा चलिए, ड्रोन, लॉइटरिंग म्यूनिशन, स्मार्ट म्यूनिशन जितने भी आज के टाइम पर हैं, से these are the means. There is a difference between principles of war and means of war. So जो drones, loitering munition, etc., they are means. So means change. कल टैंक था, कल फिर उसके बाद मिसाइल आ गई, अब लॉइटरिंग म्यूनिशन आ गया, ड्रोन आ गया, कल कुछ और आ जाएगा. ठीक है. These are the means. But the basic principles of war, they remain the same. So at the end of the war day, it doesn't matter how high tech weaponry you have, you need to have some boots on the ground. यस, And especially at that area where one man sitting on top can actually commandeer a lot of area around. एक बंदा 21,000 फुट की ऊंचाई पर बैठा हुआ है, वो जितनी दूर तक देख सकता है वो उतनी दूर तक कंट्रोल कर सकता है, वो 100 लोगों पे राइट. भारी पड़ेगा. ज्यादा पर एक हम्म, बंदा भी ज्यादा पर भारी पड़ सकता है, राइट. जब हमने जो नॉर्मल अटैक टू डिफेंसिव ट्रूप्स की जो रेशो होती है प्लेन में, हाँ, नॉर्मल वो होती वो है 4:1. 4:1 तो होती है. अगर एक कंपनी एक लोकेशन को डिफेंड कर रही है, देन इट इज एडवाइजेबल दैट अ बटालियन अटैक्स इट, 4 कंपनियों से अटैक करें, ठीक है, हम्म, या 3 कंपनियां अटैक करें एक रिजर्व में रहे, वो डिपेंड करता है टेक्निकल सिचुएशन पे और कमांडर पर एट द एंड एक आदमी पर 4 बंदे अटैक करेंगे, ये प्लेन में होता है. इन कारगिल वी हैड अलॉटेड 16-1. So it was just a platoon there on top. हाँ, It was a battalion that attacked. हम्म, It was a company on top. It was a brigade that attacked. तो हम्म, हमने इस तरीके Siachen is a different animal. या, Siachen is a different animal. There only two guys sitting on an ice column. They can control even a full brigade. उनको कुछ करने, क्योंकि जो जो बंदे जा रहे हैं ना उनके लिए ही weather और environment is itself is an enemy. यस, चलना भारी है वहाँ, द राइट. वेदर तो इज योर एनिमी देयर, नॉट एक पाकिस्तान. स्नाइपर एक स्नाइपर एक अच्छी गन बिठा दीजिए, दैट्स इट, ही कैन कंट्रोल एन नंबर ऑफ अटैक्स. और अगर मान लीजिए आपका नॉर्मल वेपनरी भी है, तो मे बी दे विल बी एबल टू मेक लाइफ लिटिल बिट इजी फॉर दोज पीपल हु आर डिफेंडिंग और अटैकिंग. बट आई डोंट सी अ पैराडाइम शिफ्ट like Ops in Dhurme. There was smart munition that we used, good tactics that we used, and we could substitute our manned aircraft with those smart weapons. या, हमारे मैंड एयरक्राफ्ट को पाकिस्तान जाने की जरूरत नहीं पड़ी, हमने दूर से ही वी टुक आउट सो मेनी टारगेट्स, राइट. या, That's advancement of technology. But there, this advancement of technology is not going to help us in such a way कि हम कुछ पैराडाइम शिफ्ट लें. वहां पर लड़ाई एट द एंड इट वुड बी ऑन बूट्स ऑन द ग्राउंड. तो मैं नहीं सोचता कि सियाचिन जैसा भी कोई और अगर हमारे पास मोर्चा हो तो हमारे टैक्टिक्स कुछ ज्यादा डिफरेंट होंगे. सेम. boots on ground is okay. द मेडिकल प्रॉब्लम्स जो होते हैं, वो जो होते हैं, आई मीन व्हेन while और एक reading क्वेश्चन the नहीं पूछा आप. hmm, सॉरी. please. एक क्वेश्चन आपके शायद दिमाग में नहीं आया कि व्हाई पाकिस्तान ड्रू दैट लाइन. No, वो तो मैंने शुरू में ही बोला था कि वो ऊपर जो है सक्शम वैली वैली वो ऑलरेडी उसको दे चुका था चाइना को. नहीं. हम्म, Saksham Valley was handed over by Pakistan to China. That is 5,000 square kilometer. That's a small area. It is almost टॉप ऑफ, northwest from या, 9842.
राइट? Yes. सो इट Yeah. हैज नो डायरेक्ट कनेक्शन, एंड द लैंड जो आपको दिखता है 9842 एंड सक्सम वैली में, वो जो आपको लैंड दिखता है वो मैप पे थोड़ा दिखता है, अगर उसे ट्रैवल करना हो ना तो वहां वो पर दैट थोड़े मिल इज जाएंगे सर, या बिकॉज सियाचिन मंथ्स। ग्लेशियर का इलाका जो है वो ऑलमोस्ट टेन हाँ, थाउजेंड स्क्वायर किलोमीटर्स है, तो इट्स अ बिग ट्रैक्ट ऑफ लैंड. it's a बट big track and it cannot be just crossed very easily. नो One बट has to have. बट यू सी, वो काराकोरम तक अगर पाकिस्तान मैप में जो दिखा रहा था, Hmm. ओके, लाइक दिस वे, टुवर्ड्स द ईस्ट, नॉट द, Towards the east, हाँ जी, या, हाँ जी, हाँ जी। so that was threatening our Ladakh because हाँ, Akshay पर Chin, क्यों वो लाइन आई कहाँ से? uh, probably I'm not getting your question. हम्म, ठीक, वो जो लाइन आई मैप से, जो कर्नल बुल कुमार ने देखी 9842 से कराकोरम को ज्वाइन करते एक स्ट्रेट लाइन, हाँ, which was kind of indicating that this whole land mass is is it under control of Pakistan, Pakistan? Yes. right? So Hmm. from where that line came, because we with Pakistan we let it Uh, unmarked after yeah, 984. thence northward. हाँ, देंस नॉर्थवर्ड इट वाज नो लाइन, वहीं हाँ, पे लाइन ऑफ कंट्रोल खत्म हो गई। खत्म हो गए. उसके बाद हमने छोड़ दिया कि ऊपर नॉर्थवर्ड को जाएगा नहीं। Hmm. पर वो लाइन कहाँ से आई? वो लाइन एक्चुअली आई थी यूएस एम्बेसी से। सो Okay. Hmm. ड्यूरिंग कोल्ड वॉर इन 60s एंड 70s जब यू टूर रहे थे और बहुत सारे स्पाई प्लेन्स रशिया के ऊपर या सोवियत यूनियन की रिकॉनेसेंस के लिए, Okay, so इंटेलिजेंस। you are trying to say that this is probably the remnant of the great game played by the Britishers and Russians. नॉट ग्रेट, ग्रेट गेम उससे पहले होगी, ग्रेट गेम तो चलो अर्लियर Remnant सेंचुरी मैंने थे, कहा जब थोड़ा बहुत बचा खुचा जो भाग रह गया उसका. जो कोल्ड वॉर हुई, जब कोल्ड वॉर हुई आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जो 60s और Hmm. 70s में कोल्ड वॉर वाज ब्रूटल, राइट? Yes, yes. अगर अगर अफगानिस्तान में जाने की रशिया ने गलती ना की होती तो प्रोबेबली कोल्ड वॉर चल रही होती। ठीक है, सो दैट इज अ स्टूपिड थिंग दैट रशिया यू डिड। या यूएसएसआर आज भी होता शायद. आज शायद आज होता, बिल्कुल होता, बिल्कुल होता। हम्म, अच्छा, एक्चुअली उस कोल्ड वॉर के दौरान पाकिस्तान ने भी अमेरिका को इजाजत दी थी अपने एयर बेसिस से U2 उड़ाने की, जो इकलौता U2 रशिया ने मार के गिराया था यूएसएसआर ने, दैट फ्लू फ्रॉम पाकिस्तान। उसने पाकिस्तान. टेक ऑफ पाकिस्तान से किया था और वो नूर खान, रशिया के, नूर खान. अच्छा चलिए एयर बेस नहीं मुझे याद, पर हम्म, उसने यहीं से किया था। हम्म. अब ओके. ओके, सो आई एम सॉरी, सो जो पाकिस्तान ने, क्योंकि वो एयरबेस दे रखे थे, यू टू प्लेन वगैरह उड़ते थे, अब अमेरिका को ये नहीं समझ में आता। अमेरिका इज नॉट कन्फाइंड टू यूनाइटेड स्टेट्स, लाइक वी आर कन्फाइंड टू अवर ओन टेरिटरी, राइट? या, अमेरिका को लगता है पूरी दुनिया उनका प्लेग्राउंड है, पूरी दुनिया उनकी बैटलफील्ड है, तो इसलिए उनका जो सेंट्रल कमांड है सेंटकॉम, वो कतर में है, राइट? उनका एक ईस्टर्न कमांड भी है जो इस पूरे हाँ, एशिया को वगैरह वगैरह को देखता है, ठीक। थिएटराइजेशन जो किया उन्होंने अपने कमांड्स का. हाँ जी, तो हम्म, उसके लिए उनको दे वांटेड टू नो कि भाई ये एरिया, उनको समझ में नहीं आया कि ये लाइन यहाँ खत्म क्यों गई। हम्म, तो अब इसका क्या करना है आगे? अगर हमारा प्लेन जाए तो उस प्लेन को कैसे पता होगा वो इंडिया में है पाकिस्तान में है? हम्म. तो उन्होंने सोचा कि ओके, फॉर द ईज ऑफ देयर ऑपरेशंस दे Okay. ड्रू दिस लाइन। Okay. For ease of their operations, they drew this line. It was not initially done by Pakistan, but Pakistan picked it up हम्म. because Americans did it. They simply, वो कहते हैं ना, सफाई से बिल्कुल बिना किसी को शो किए उन्होंने वो मैप्स वहां से कॉपी कर लिए एंड दे स्टार्टेड यूजिंग दोस, स्पेशली विद नॉर्मल कॉमन फॉरनर्स। हम्म. अपने चाहे हम ऑफिशियल मैप्स, क्योंकि हम इंडिया के साथ एक्सचेंज कर सकते हैं, राइट, ये हमें करने ही पड़ेंगे जस्ट इन केस जरा से भी डिमार्केशन होती है, देन इट हैज टू बी म्यूचुअली एग्रीड एंड एक्सचेंज. साइन। या. तो हमने वो किया नहीं पाकिस्तान ने, हमने वो अमेरिका से वो मैप उठा लिए कंसिडरिंग इट या पुटिंग इट एज अ डिफेक्टिव अप्रूवल। हम्म. यहाँ भी देखो अमेरिका के वहां से आए हैं तो वी जस्ट स्टार्टेड यूजिंग इट, या हम्म. अमेरिका ने भी टेसिट अप्रूवल हमको दे दी है, हम्म. सॉर्ट, दे हम्म. स्टार्टेड प्रोजेक्टिंग इट इन दिस वे। पर हम्म. उन्होंने कभी ये नहीं बताया कि सोर्स कहाँ से। हम्म. दे नेवर सेड इट। ये बाद में किसी बंदे ने भी कुछ साल पहले ही ट्रेस द हिस्ट्री कि अच्छा जी ये लाइन एक्चुअली वहां से आई थी। तो अगर मान लो वो लाइन ना लगी होती तो हम्म. प्रोबेबली ऑपरेशन मेघदूत भी ना होता, हाँ, मतलब प्रोबेबली देन, ऑपरेशन मेघदूत भी ना या, होता। देन वी कैन से कि यस, फिर तो ऑपरेशन मेघदूत भी नहीं यू होता. नेवर न्यू, यू हाँ. नेवर न्यू कि हिस्ट्री किस तरफ जाती। हाँ. हो शायद होता, पर बहुत चांसेस है कि ना होता, हम्म. क्योंकि अगर मान लो लाइन ना होती, पाकिस्तान उसके एडवांटेज लेके पूरी टेरिटरी को अपना दिखाने की कोशिश ना करता, शायद माउंटेनियर जो थे उनको अलाउ ना करता और हम भी आराम से बैठे होते।
तो ये जो 3 करोड़ 5 करोड़ पर डे की जो आप बात कर रहे हैं, जब मैं छोटा तब भी बात आती थी, बट एट द एंड कहीं ना कहीं ये कंसेंसस था, जो सॉरी पर जो लेफ्टिस्ट हिस्टोरियन या एडिटोरियल थे वो हमेशा ही बात करते थे 3 करोड़ देखो, डू यू वांट। नो। मेरे एक अपने प्रोफेसर थे, हाँ, बोल लीजिए, उसके बाद मैं बोलूंगा। हाँ। मेरे एक अपने प्रोफेसर थे, ही वाज नॉट एंटायरली लेफ्टिस्ट, पर जब हमने ये सबमरीन की बात होती थी ना, ये हमने आई थिंक कोई सबमरीन की डील करनी थी रशिया के साथ या प्रोबेबली फ्रेंच के साथ, तो वो डील करते वक्त उन्होंने बोला कि हमको ये डिसाइड करना है कि क्या हमें 6,000 करोड़ की एक सबमरीन लेनी है या 300 स्कूल लेने हैं। स्कॉर्पियन क्लास की जब हो रही थी, यस। तो हमको 300 स्कूल बनाने हैं नए जिसमें बच्चे पढ़। Then I got up and I said, if Pakistan is having F-16 which can deliver a nuclear weapon, what do you think we should do? हम्म। Then I took a magazine to literally मैं college में सर ये देखो ये लिखा हुआ है. This is what Pakistan is trying to do. So what do you think we should do? How are we going to tackle it? If we do not have any better platform to counter Pakistan, मैं नहीं कह रहा कि हम सबमरीन से F-16 को काउंटर कर लेंगे, but you need to have some kind of power to keep it in check. सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी। तो वो थोड़े से सज्जन तब थोड़े से शांत हुए कि ओके फाइन ठीक है माय लड़का। माय पॉइंट वाज नॉट दैट इन मेंशनिंग दैट अमाउंट। वो हम्म, मुझे अचानक से ध्यान आया। माय पॉइंट वाज दैट देयर वाज अ टाइम हम्म, व्हेन वी वर स्ट्रगलिंग फॉर फंड्स। हम्म, There was a time when our soldiers were not having the proper winter clothings. या एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली उनको एब्सोल्युटली। वो यूज किया हुआ दूसरे जवान का हम्म, यूज करना पड़ता था, विंटर क्लोथिंग्स। वो फटे हुए भी होते थे। वो तो मतलब जॉर्ज, क्या नाम उनका? जॉर्ज फर्नांडिस। हाँ, जॉर्ज जॉर्ज फर्नांडिस। फर्नांडिस। सॉरी। He changed a lot of circumstances and situation there. He was the best defense minister we Best, could ever one among get. the best defense ministers. मतलब I वो do not know if you know it. I do not know if your viewers know it. But George Fernandez had given an instruction. He had passed an order that defense secretary and other go there. senior हाँ, will go to Siachen. all the Siachen, all the theaters. They Yeah, will spend a night there. They will go yeah, to submarine. They will go yeah, to aircraft carrier. They will live there to know yeah. what our soldiers face. He So was he that was probably the first defense minister to go to Siachen every month. He used to go he, there he, every month. he, he used to, he was a great defense minister. He was the first one who publicly said Hmm. that Pakistan is not our challenge number one. It is China. No, So why it's don't we accept China. it? Hmm. Why don't we accept it? ये एक अच्छी बात है। ये आज जो हम कह रहे हैं ना कि भाई हमारे किसी टाइम पर हमारे सोल्जर उतरा हुआ कपड़ा पहनते थे या सेकंड कपड़ा पहनते थे या बहुत सारे सोल्जर एक चीज शेयर करते थे, आज नहीं है। टू Hmm. बी ऑनेस्ट credit where it is due, it is because of BJP's government, be it Atal Bihari Vajpayee's government. They gave maximum possible Yes. uh, attention and funds, और यही नरेंद्र मोदी से 2014 से पहले आई न्यू बिकॉज आई क्लोजली फॉलो ऑल द डेवलपमेंट्स। अब मैं Well, थोड़ा कम हो गया हूँ बिकॉज ऑफ माय प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। पहले तो मैं हर चीज़ को बड़ा ध्यान से रखता था, तो मुझे पता होता था कौन सी डील चल रही है, कब वो कैंसिल हो रही है, मुझे हर चीज़ का ध्यान होता था। और ए के एंटनी ने वो तबाही मचाई थी। well, ए के एंटनी ने वो तबाही मचाई थी that कि is that is a topic for another session. अनदर डिस्कशन। हाँ Yeah, जी हाँ जी, another पर session. But एक बात मुझे और बतानी थी सियाचिन के बारे में। आई एक्चुअली नाउ मिसिंग इट। हाँ, सो व्हेन दिस डिस्कशन वाज गोइंग ऑन के जी इट इज too expensive an operation, and why India and Pakistan both lose life because of that land where nobody lives, where nobody can actually practically go there and occupy it. So, or and we lose life because of avalanches. हम आपस में लड़के इतना नहीं मर रहे जितना वहां पे सर्दी weather से से, मर रहे हैं। हाँ, और कई सारे लोग फ्रॉस्ट बाइट, हाथ काटना पड़ रहा है, पैर काटना पड़ रहा है। तो क्यों इतना सब क्यों करना है? तो लेट्स काइंड ऑफ डी एस्केलेट। तब ये demilitarize बात it. डिमिलिटराइज्ड इट, एंड मनमोहन सिंह के टाइम पे, उससे पहले भी इवन राजीव गांधी के टाइम पे भी ये बात हुई थी। पर जब लेटेस्ट ये बात हुई तो मैंने वो जनरल राघवन की बुक का आपको बोला था, सियाचिन वाली बुक का, राइट? उन Hmm. जनरल राघवन ने ये बोला, बताया एक इंटरव्यू में, वो पाकिस्तान की मीडिया ने उनको इनवाइट किया डिस्कशन के लिए। तो पाकिस्तान मीडिया के साथ डिस्कस करते हुए उन्होंने कहा कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज जरूरी नहीं है कि फोर्सेस के बाहर रहने से क्लाइमेट चेंज आ रहा है। क्लाइमेट चेंज तो पूरी दुनिया में हो रहा है, राइट? Hmm. हाँ, पर चलिए ठीक है, मैं मान लेता हूँ कि सियाचिन की जो ग्लेशियर की जो सेहत है वो अफेक्टेड होगी क्योंकि वहां पर Hmm. इतनी सारी फोर्सेस, राइट?
पर इसको जब डीमिलिटराइज करना था, देन वी हैड come to an understanding with Pakistan where we wanted to exchange maps कि मार्क आउट हम टेरिटरीज। मार्क आउट कि हाँ भी हम यहाँ यहाँ पर हैं, आप वहाँ पर हैं, हम साइन करते हैं, मैप्स एक्सचेंज करते हैं, देन वी कैन डीमिलिटराइज, वी कैन गो बैक टू अवर बेसिक पोजीशंस. बैरक्स। But you refused it. You did not want it, and Pakistani said that okay, but it is because you should not be there at the first place. And General Raghavan said yes, even you should not have been there at the first place. It was game that you started, we ended it. You lost it and now you are crying. Yes, it's simple. We can afford to be there, You can't. and we are willing to spend that kind of money and manpower to protect the land that belongs to us. So if you actually value life, if you actually value money, if you actually value the poverty of both the that both the nations have, then okay, sign the damn maps and yeah, let's go back to barracks. But that never happened. No, because again, we will continue discussing it, क्योंकि वो उनकी उनके इंटेंशन में है कि नहीं, हमें पीछे नहीं हटना है, एंड वी हैव टू डिसीव, अगले को धोखा देना है। Or it is not that economical burden for them. उनके साइड पे जो टेरेन है हाँ, वो वो काफी सपोर्टिव है। सपोर्टिव है, प्लस क्योंकि हमने हाइट्स कैप्चर की हैं तो हमारा जो लॉजिस्टिक बर्डन है वो बहुत ज्यादा है. बहुत ज्यादा है। उनका लॉजिस्टिक बर्डन इतना ज्यादा नहीं. सो दे आर हैप्पी टू मेक अस ब्लीड, यू नो, 1000 cuts. No, but दे आर they think that they are making us bleed, but we are not. हाँ, ठीक, वी कैन टॉलरेट इट, इट्स फाइन. अब तो वो भी समझ गए हैं कि इंडिया कैन टॉलरेट इट, नाउ वी कैन टॉलरेट 10 times, वी डोंट माइंड. हाँ, we don't mind. हम 80s में जब हम टॉलरेट कर सकते थे, आज तो छोड़ दो, तो हम तो कर लेंगे. पर वो इस सेंस से भी खुश हैं कि चलो ठीक है जी, हमारा तो 1 रुपया लग रहा है, इंडिया का 10 लग रहा है, तो यू नो कहीं दैट तो काइंड ऑफ फॉल्स सेंस मेंटेलिटी। ऑफ. हाँ No, भाई. that's अब the mentality. yes, that's their mentality, that's how they try to keep themselves happy. हर बात पे, हर अपनी किसी भी डिसएडवांटेजेस. अभी आप सिंदूर में भी तो वो यही कर रहे हैं ना. मेरे को यहाँ पर पाकिस्तान का एक लड़का मिला था यहाँ पर, वो भी मुझे कह रहा है कि सर पर ये तो बताओ कितने जहाज गिरे. मैं कहा भाई जितने भी गिरे सामने आ जाएंगे, तो हमारे देश में छुप नहीं सकता है. अगर एक फ्लाइंग एक्सीडेंट हो जाए, उसका वीडियो सामने आ जाता है, हाँ, तो 3 रफाल गिरे होते तो उसका भी आ जाता भाई. नहीं, सबसे बड़ी बात है कि हमारे जितने भी गिरे हों, तुम बताओ तुम्हारा क्या हाल हुआ। उसको मैंने बोला तू कुछ दिन रुक, कुछ महीने रुक, कुछ साल रुक. 15 दिसंबर 1971 तक तुम्हारे अखबार यही बोल रहे थे कि हम जीत रहे हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं. पाकिस्तान की जनता सड़कों पे इसलिए निकली थी कि 15 तक तो जीत रहे थे, सालों 16 को क्या हो गया तुमने सरेंडर कर दिया. नहीं, 16 को देश अलग हो गया। हाँ, तो वो जो जो उनको ये डिसीव करने की जो हम वहाँ की आर्मी की जो निरंतर सफल कोशिश है, मतलब इसको देखते हुए वहाँ की जनता को क्वेश्चन मारता है, तुम कभी तो सीखोगे, कभी तो सीखोगे ना कि हाँ कि ये बंदे ने मुझे 65 में झूठ बोला कि 65 में लड़ाई हिंदुस्तान ने शुरू की और हमने मार गिराया, 71 में झूठ बोला. एक पता नहीं मेजर या लेफ्टिनेंट जेट या कर्नल हुआ करता था, मलिक, इन पाकिस्तान आर्मी। ही रोट अ बुक। ब्रिगेडियर मलिक. हाँ, ब्रिगेडियर मलिक, ही रोट अ बुक, क्या नाम, क्या नाम पुरानिक बुक का? पुरानिक कंसेप्ट ऑफ वॉर। हैव यू रेड इट? नहीं. ये ऑनलाइन मतलब पीडीएफ मिल जाएगा, मैंने पीडीएफ ही पढ़ा है उसका। मतलब मेरे को तो ये समझ में नहीं आता कि चल ठीक है, दैट्स देयर मेंटालिटी, दे जस्ट डोंट वांट टू गेट आउट ऑफ यू शुड रीड इट। आई रिकमेंड यू दिस बुक। कभी मिले इट. और मैं आपको भेज दूंगा, मेरे पास सॉफ्ट कॉपी है उसकी। नो प्लीज, हालांकि मैं प्रॉमिस नहीं करता मैं पढ़ पाऊंगा, क्योंकि टू बी ऑनेस्ट मुझे अब एक ही तरह की किस्म की किताबें पढ़ने की आदत है. इतनी मॉडर्न बुरी वॉरफेयर। आदत है कि मेरी वाइफ ने एक बार मुझे बोला कि सुमित, यू रीड ऑल दीज वॉर एंड बैटल्स, मतलब ये तो तुम्हारा मेंटल हेल्थ के लिए इतना अच्छा नहीं, मतलब व्हाई डोंट यू ट्राई समथिंग एल्स. आई सेड आई डोंट वांट टू, आई एम हैप्पी विद दीज. एंड शी सेड नो, यू शुड ट्राई. उसकी इंसिस्टेंस पे आई पिक्ड अप दैट बुक, Monk Who Sold His Ferrari. Now ओह। that's, I said okay, I'll read it. And trust me, मैंने 30 पेज पढ़े. उसके बाद मैंने कर दिया, सॉरी यार, आई कांट रीड इट. आई कैन अंडरस्टैंड योर फ्लाइट।
मैं ये नहीं कह रहा कि वो किताब खराब है, नहीं, ना ना ना, एब्सोल्युटली ये ये हमारे टेम्परामेंट से मैच नहीं करता। एग्जैक्ट। और प्लस अब मुझे लगता है कि इफ आई डू नॉट रीड अ बुक that does not have these words battalion, assault, armor, plane, plan, general, brigadier, अगर ये कीवर्ड नहीं है ना बुक में, तो मेरे दिमाग को लगता है समथिंग इज मिसिंग। द बुक दैट यू शोड, दैट यू आर रीडिंग दिस वन, हम्म। टारगेट एरर, राइट? मुझे नहीं पता मैं कैसे पढ़ पाऊंगा इसको, क्योंकि ये सारे शब्द इसमें नहीं होंगे। इट ना, इज बट दिस वेरी, इज डिफरेंट पैराडाइम ऑफ वॉर। या इट इज इंडीड, इट इज इंडीड। पर मतलब आप सोचो ना, 2002 से 2025, 23 साल हो गए मुझे ये किताबें पढ़ते हुए। 23 साल मतलब अगर कोई बुक है इंडियन आर्मी पे जो मुझे नहीं पता है, तो आई कैन प्राउडली से, आई कैन फ्लॉन्ट, आई डोंट माइंड कि या तो वो ऑथर बुक लिख रहा है या वो भी छप रही है, अगर वो मुझे नहीं पता है तो। क्योंकि जब 2014 से पहले जब अमेजोन नहीं आया था, तब बहुत कम किताबें लिखी जाती थी। ये सियाचिन कम की जो किताबें हैं ये सब उससे उसके पहले बाद। लिखी थी। हाँ। तो तब क्या होता था कि मैं जनरली मतलब ये पेंगुइन की वेबसाइट पे जाके देखना, कोई नई किताब छापी इन्होंने आर्मी पे, कभी फिर मैं वो पेंटागन प्रेस उनकी वेबसाइट पे जाके देखना, फिर कभी जितने भी पब्लिशर, नटराज पब्लिशर, लांसर, जितने पब्लिशर हैं उनकी वेबसाइट पे जाके देखना, वो नई किताब छपी। उसके बाद आसान हो गया, 2014 के बाद भी कोई भी किताब छापेगा तो अमेजोन पे बिकेगी, चाहे पब्लिशर बेचे चाहे कुछ सेलर बेचे, तो वो अमेजोन पे बिक जाती थी। तो अब मेरे को पता है कि हाँ भैया, 2014 के बाद क्योंकि एक्सेस इतनी बढ़ गई है यस। कि लोगों ने लिखना शुरू कर दिया। 2014 से पहले बायोग्राफीज जनरली होती थी जनरल्स की, कोई सम लेफ्टिनेंट जनरल, आर्मी चीफ, यस, सम अब तो रेयरली सब। सम मेजर जनरल। रेयरली, मेरे को नहीं याद है कोई मेजर जनरल की बायोग्राफी 2014 से पहले किसी ने लिखी हो। वो लेफ्टिनेंट जनरल की जोशी की भी तो आई है ना, वो हु डेयर्स विन, हु डेयर्स विंस। हाँ, नहीं नहीं नहीं, फुट इज विन, वो तो चलिए, फिर भी लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर हुए हाँ पाई के हाँ। जोशी, राइट? तो 2014 से पहले कोई मेजर जनरल की बायोग्राफी, ब्रिगेडियर की तो भूल ही जाओ, इट वाज अनथिंकेबल। 2014 के बाद आई कैन सी ऑल सॉर्ट ऑफ बायोग्राफी, इवन कर्नल। Coming back to again this our focus, हाँ, Siachen. Yeah. थैंक यू, Uh, थैंक यू। what do you see in near future and long term? फॉर सियाचिन, Yeah. Apart from that, we will keep that under our control. see, Siachen can only be resolved on two simple conditions. One, we demarcate it on the map, Mm. sign, countersigned by Pakistan, exchange maps, and then we come down. And we keep it under regular vigil Mm. with satellites or maybe with drones Patrolling. or maybe patrolling, sometimes occasional, etc. etc. That is one. Uh, that is one option. The second option is simply if we capture POK, if we get POK back, then the whole Jammu and Kashmir is ours, Mm. right? Then we Mm. do not have to be on Saltoros. Yeah. So these are the only two conditions. I do not see any third option because you So cannot trust Pakistanis. no, no, no. There is no question of trusting them. Yeah. So if we have to take back the POK, Mhm. that would solve our Siachen conundrum. Yeah, but see, taking back a land, it's not simply land, it's land filled People. with people, Yes. people, right? So if that, see, why we could achieve victory, lightning victory in Bangladesh, because the general population was with us. It was not with Pakistan. So they supported us, right? So it was a clear-cut victory of Indian Army plus Mukti Bahini plus Mm. Bangladeshi people. You take one out of that equation, the equation is becomes unstable. चलिए मैं एक सेकंड के लिए मान लेता हूँ कि मुक्ति वाहिनी को अगर आप हटा देते तो हमारा टास्क मुश्किल हो जाता, मुश्किल हो जाता। मुश्किल हो जाता, ठीक है, इम्पॉसिबल तब भी ना होता, अचीवेबल होता अगर लोकल पॉपुलेशन हमारे साथ होती, हमारी जो आगे बढ़ती हुई फौज है उसकी मदद कर रही होती, जैसे बांग्लादेश में हुआ, तो मुक्ति बहानी के एब्सेंस में भी अचीव हो जाता। शायद 13 दिन ना लगते, 20 लग जाते, या Mm. हो सकता है 13 में ही हो जाता। पर अगर आप जनरल पॉपुलेशन को हटा दो ना इक्वेशन से, तो जो हमने बांग्लादेश में किया वो ना हो पाता। No, see, probably.
Pakistan lost in Kashmir because of that. That is one among the reason that जनरल पॉपुलेशन वहाँ की जो है जो गुज्जर्स बकरवाल गुज्जर्स हैं वो 65 में भी या 48 में भी इवन इन See, कारगिल जो इट वाज दैट दे इन्फॉर्म दैट वहाँ पे कुछ मूवमेंट्स चल रही हैं पाकिस्तानीज की यू नो द नहीं, वो इंफॉर्मेशन थोड़ा कॉम्प्लेक्स, वो इक्वेशन कॉम्प्लेक्स है। देयर आर नो पैरेलल्स। जो बांग्लादेश में हुआ 71 में और जो कश्मीर में होता आ रहा है उसमें कोई पैरेलल नहीं है। no क्यों? I'm मैं not बताता I'm not trying to draw the parallel. What I'm trying to say is that unless until population is with you on the हूँ। हाँ, with the invading एग्जैक्ट, army, it is really difficult to hold that land. But ठीक ठीक ठीक। और that is और और जो बकरवाल्स की आप बात कर रहे हैं जनरली वो शिया हैं। hmm, ठीक है, तो yeah वो yeah जनरली सुन्नी एक्सट्रीमिस्ट व्यू के अगेंस्ट होते हैं एंड दे आर मोर कोऑपरेटिव और हैप्पी गो लकी पीपल, बेटर देन एक्सट्रीमिस्ट शिया पॉपुलेशन, सुन्नी पॉपुलेशन जो कि hmm. पाकिस्तान के बहलावे में या कह लो उनकी जो उंगली से या उनके सपोर्ट बेसिकली से। जो पंजाबी माइंडसेट है बेसिकली उसके आगे बिल्कुल, पाकिस्तानी पंजाबी प्लीज, हाँ मैं इंडियन पंजाबी हूँ, सॉरी प्राउड इंडियन पंजाबी, तो मैं क्या करूँ? नहीं 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 वो आई पाकिस्तानी एम पंजाबी माइंडसेट आई एम एज प्राउड पंजाबी एज आई एम प्राउड इंडियन, या राइट? दैट इज that is a given, Sumit. At least with me, the case is that जैसे मैंने बताया कि वो आगा अमीन के व्हाट्सएप ग्रुप में हम लोग मिले या फिर फेसबुक पे एक पाकिस्तानी सज्जन से जो बात हो रही थी अनलेस until uh, there's that how would I put it? See, like I'm not against your country or against you, but unless until I see that the same thing reciprocated. And probably that was missing in both these gentlemen and many other Pakistanis. During my France stay, I have interacted. That thing is missing, and probably that's where, as a human being, I would like to continue my interaction with them. But as an Indian, no. मैं तो जितने भी पाकिस्तानी के साथ मैं इंटरेक्ट करता हूँ, कभी फेसबुक पे भी किया है, यहाँ फेस टू फेस भी करता हूँ, तो मैं उनको ये कहता हूँ भाई, इट्स सिंपल। अगर आप मेरे घर फूल लेके आओगे तो मैं आपकी खूब खातिरदारी करूंगा। Obviously, चाय चाय, नाश्ता, रात का खाना, डिजर्ट, और मैं आपको बाहर तक छोड़ के भी आऊंगा, आपकी गाड़ी का दरवाजा भी करूंगा। आप मेरे घर तलवार लेके आएंगे तो मैं दूर से ही आपके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। बस बात वही है. ठीक, ये सिंपल सी बात है। आप हमारे घर फूल लेके आएंगे तो मेहमान नवाजी, आप Hmm. पहलगाम में किसी को भेजेंगे तो हम आपके यहाँ बम मारेंगे। इट्स एज बस सिंपल एज दिस, सिंपल, राइट? और आप भी मेरे लिए यही करोगे, मैं आपके घर आऊंगा हाँ. फूल लेके, सिंपल सी बात है, राइट? तो अनलेस आप इस बात के लिए तैयार ना हो, मैं कुछ नहीं कर सकता। अगर आप फूल लेके आने के लिए तैयार नहीं हो तो आप अपने घर बैठे, It's a हम it's a अपने घर में खुश हैं। it's a complex situation. एक्चुअली वो पाकिस्तान भी कभी फिर कभी डिस्कस कर, दे हैव बीन फूल्ड वेरी ब्यूटीफुली, तो वो Ah, फिर कभी डिस्कस करेंगे। मतलब दैट्स अ लॉन्ग टॉपिक, आई कैन स्पीक फॉर आवर्स, और क्योंकि मैंने रफली देखते कोई एक डेकेड। देखते देखते हम लोग लगभग 1.5 घंटे से बात कर रहे हैं and I तो don't think we have covered even 20% of our intended topic. हाँ, Yes, sir. और हम दोबारा दोबारा भी बात कर सकते हैं और हम अलग अलग टॉपिक से बात कर सकते हैं। मुझे मुझे मजा आता है जब कोई क्वेश्चन करता है तो मेरा दिमाग Hmm. चलने लगता है, लाइक आई लव इट। Hmm. पर हाँ, सियाचिन, इट्स एन एपिटोम ऑफ bravery, it's an epitome of Ah, valor. Even spending a tenure of 3 months there is in itself a certificate of great bravery, of epitome, achieving the zenith of bravery. Just staying there, not fighting. क्योंकि कारगिल में भी आपको पता है कि 1999 से पहले कारगिल में भी, मतलब जनरली नॉर्म यही था कि सर्दियों में हम, वो भी नीचे पिकेट टू पिकेट होते थे। आज भी पिकेट टू पिकेट है, इधर हमारी hmm. पिकेट है, सामने उनकी पिकेट है, राइट? Ah, तो तो सर्दियों में हम लोग नीचे आ जाते थे, गर्मियों में हम लोग ऊपर चले जाते थे। तो जब गर्मियों में ऊपर भी गए हैं, मतलब वो सर्दी की शुरुआत में जब हम ऊपर भी गए हैं, तो बहुत बार वैसा होता था कि वहां से व्हाइट फ्लैग लेके hmm. बंदे आते थे। तो आगे कहते थे साहब हमारा स्टॉक नहीं आया, एक रम की बोतल अगर आप दे दो, हमारा स्टॉक आएगा, हम पूरा कर देंगे। Ah, तो वो कहते थे yes, sir. ऑफिसर, ऑफिसर बात करते थे कि हाँ ठीक है, वेदर इज अवर कॉमन एनिमी, Hmm. सो लेट्स फाइट इट, आप एक बोतल दे दो,
मैं अब हमारा को टाइगर बॉटल भिजवा दूंगा, या दे वुड डू दैट। No, this is the stories I have read. वो It is only after Kargil that हम्म, they broke this unwritten special accord. camaraderie. Yeah, Yeah, unwritten accord. unwritten accord and sort of यूनिफॉर्म्ड camaraderie. हालांकि दोनों हम्म, यूनिफॉर्म पर्सन एक दूसरे के एनिमी हैं, बट स्टिल देयर वाज सम सॉर्ट ऑफ camaraderie in them that they हम्म, were fighting together yeah, with shared resources, yeah. राइट। अब वो उन्होंने वो बेवकूफी तब की, पर स्टिल सियाचिन में रहना तो एकदम हम लोग नहीं सोच सकते, वी जस्ट कैन नॉट इवन थिंक अबाउट इट। I remember during my college university days, हम लोग गए थे रोहतांग पास ट्रैक करने के लिए, रोहतांग पास एंड ऑल। सो यू नो माउंटेनिंग क्लब की तरफ से, और वो IMF इंडियन माउंटेनियरिंग फाउंडेशन का स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम। आई मीन उस हाइट पे ही चलने में लगता था, एंड दैट टू व्हेन व्हेन आई वाज व्हाइल आई वाज इन माय 20s। तो उस समय ही लगता था कि वाओ, कितना दिक्कत है। तो अनलेस अनटिल वो, हिंदी में एक कहावत है ना, जाके पाँव न फटी बीवाई, सो क्या जाने पीर पर आई। अनलेस अनटिल you face those extreme conditions, तो यू वो डू नॉट नो। आप अंदाजा, you can imagine, you can't even imagine, क्योंकि आपके पास वो एब्सोल्युटली। पैरेलल पैरेलल नहीं है, उस एक्सपीरियंस का पैरेलल नहीं है। तो बिल्कुल यू बिल्कुल। कांट इवन इमेजिन। वेल, मैं क्या बोलें ऑन दिस नोट। we can end this today's session, and maybe या we will talk about something else probably, or maybe we'll start over and we will take start it up over from where we. because there are many other questions which I have in my mind on Okay, sounds Siachen, good. Okay. because Siachen is the, क्या बोलेंगे उसको, ये प्रस्थान बिंदु है। जैसे हमारे सनातन धर्म में प्रस्थान त्रयी है, अगर किसी को अपना एक नया सेक्ट चलाना है तो उपनिषद हो गए, वेद हो गए, और भगवत गीता हो गई, गीता। इन तीनों में से किसी एक पर आप भाष्य लिख दीजिए और अपना एक पंथ चला सकते हैं। फ्रॉम Okay, माई I पॉइंट get. ऑफ व्यू, हाँ, उसको सनातन धर्म में प्रस्थान त्रयी बोलते हैं, कि आप इन तीनों में से किसी से भी आप, यू कैन स्टार्ट ऑफ योर जर्नी, स्पिरिचुअल जर्नी। फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू, सियाचिन प्रोबेबली इज द प्रस्थान बिंदु, जिसको बोलते हैं स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ इंडियन आर्मीज स्ट्रेटेजिक डॉक्ट्रिनल चेंज, शिफ्ट नॉट चेंज, शिफ्ट। वहां से वो शिफ्ट होना शुरू हुआ कि नहीं, नो, आगे बढ़ के भाई ये हमारी है, और अगर हम इसको कब्जा नहीं करते हैं, इस पे हम नहीं बैठते हैं, और हमारा दुश्मन आके बैठता है, तो हमारा अंदर के जो जो सेफ पॉइंट्स हैं वो थ्रेटेंड हो जाते Okay, मैं थोड़ा सा डिफरेंट व्यू रखता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वो पॉइंट तो 71 में आता है। 71 में हम चाहते तो हम शांति से बैठ सकते थे, but we decided to take such a huge step. So that was a great synchronization between political and military leadership, that we took such a big step, and we were successful in carving out a whole new nation. We could have been quiet. हैं। या बट यू सी, पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान में जो कुछ भी कर रहा था, उससे हमारी सीमाएं थ्रेटेंड नहीं थी, उससे हमारा इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेटेंड था, कि हाँ वो आके उत्पात कर रहे हैं। मैं सीमाओं की सुरक्षा की बात कर रहा नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूँ, अगर हम इंटरनल सिक्योरिटी को ना ध्यान में रख, सॉरी, जो आपने जो सीमाओं का जो बात की, मतलब एक्सटर्नल हूँ। सिक्योरिटी हमारी हम्म, को ना ध्यान को रखते हुए सिर्फ अपने इंटरनल केओस के लिए, हम्म। प्लस जो ह्यूमन लॉस ऑफ लाइफ वहां पर हो रहा था, उसके लिए That's no, no, मानवीयता को ध्यान। that's where I'm saying that 71 was not a, doctrinal change in our army's military thinking. क्यों? Siachen कैसे? was. कैसे? See, no, in 71 we might have played many scenarios, okay, but nowhere it would have come to our mind कि अगर हम एक नया देश नहीं बनाते हैं, तो प्रोबेबली हमारा चिकन नेक थ्रेटन हो जाएगा, या हमारा नॉर्थ ईस्ट थ्रेटन हो जाएगा।
because traditionally, in traditional sense, Indian army is way stronger than Pakistani army. तो ये हमारे दिमाग में कभी नहीं रहा, कभी नहीं था कि हम जो है सो कि अपना कोई भूभाग हार जाएंगे. But the moment you look at Akshay chain where China is there, Pakistan is there, and that two front war, probably वो नहीं, क्योंकि पहली बात 71 के ऑपरेशन के बाद चिकन नेक सिक्योरिटी वाज नेवर अंडर कंसिडरेशन, नेवर अंडर कंसिडरेशन. Whatever steps we took, it was not to safeguard our chicken neck vulnerability. No, Mhm. we never. In I have read, I do not know, countless books, countless 71 पर शायद ही कोई There are बुक many होगी. books. ठीक, मतलब मैंने पाकिस्तान से ही बुक्स मंगवा रखी, 10 किताबें मेरे पास पाकिस्तान. उनका जो तब जो डीजीएमओ थे, वेरी फाइन जनरल ऑफिसर, उनकी बायोग्राफी इट्स काइंड ऑफ सॉर्ट ऑफ रेयर नाउ. आई हैव Mhm. इट, मैंने वहां Mhm. से मंगवा कर अपना ये हमीदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट, फुल रिपोर्ट, Mhm. सप्लीमेंट नहीं, फुल रिपोर्ट मैंने वहां से मंगाया था. अगर मान लो 71 के जो ऑपरेशन था उसका सिंगल सोल पॉइंट ऑफ वो पूरे ऑपरेशन का वो यही था कि पाकिस्तान वहां पर ये कर रहा है, वी नीड टू स्टॉप इट, वी नीड टू स्टॉप देम. फर्स्ट जब पहली मीटिंग इंदिरा गांधी ने 25 मार्च को बुलाई थी, 25 नहीं 28 मार्च को, 25 मार्च को उन्होंने क्रैकडाउन किया, 28 मार्च को मीटिंग हुई. उसमें जो पहला जो बात हुई थी उसमें इंदिरा गांधी ने ये कहा था कि ये मेरे को Yes. टेलीग्राम मिल रहे हैं, ठीक है, जनरल Sam मानेक Manek शाह sir. को. Mhm. तो मानेक शाह said okay, so it has nothing to do with me, so what do you want me to do? I want you to do something. उसने कहा, Mhm. what do you want me to do? तो इंदिरा गांधी ने कहा I want you to march in. Mhm. So that was हाँ. the time of great moral courage when Sam denied कि नहीं भैया it won't happen that easily, it's not that. Mhm. तो उस वक्त भी हमने इतना बड़ा स्टेप सिर्फ इसलिए लिया क्योंकि एक वहां पर जो लॉस ऑफ लाइफ हो रहा था, सेकंड जो रेफ्यूजीज हमारे इस तरफ आ रहे थे दे वर बिकमिंग बर्डन ऑन अस, थर्ड अगर हम इस तरीके का कुछ कर पाते तो हम पाकिस्तान को ऑफ बैलेंस कर देते. ठीक है, उससे पहले हम काइंड Agreed, हमारे but पास थ्री nowhere, फ्रंट थे. nowhere in all these three regions it is showing a shift in our military strategic It doctrine. is, it is, it is, it is. Why? Because whatever was happening in Bangladesh, it was no great threat to us. It It was was no economic. great. No. See, what I'm trying to say here, Econo- what I'm just for 2 minutes, hear me out. Refugees were coming in, demography was changing. It was a burden on our economy because we were third world country at that time. Absolutely. Okay, the food crisis was there. Mm, Okay, all these things were there. mm, Pakistan was doing covert operations in northeast. Okay, NSCN mm. and all. Yes, they were there. They were there. Yeah, no, वो no, no, nuisance means it हाँ, not a major thing, nuisance, but yeah, हाँ, nuisance value. Yeah. nuisance value only. But they were doing it, which they are doing it still in Kashmir, sort of. Okay, Okay. बट पाकिस्तान के इन सभी ऑपरेशन से हमारी बाउंड्री लाइन चेंज होने का खतरा नहीं था. वही तो मैं कह रहा हूँ, वही तो मैं कह रहा हूँ. हम्म, इन सब से हमारे को ऐसा कोई बड़ा थ्रेट नहीं था. रेफ्यूजी का जो इकोनॉमिक बर्डन है ना, फाइन, मैं no, लेट मी ड्रॉ पैरेलल, लेट मी yes, ड्रॉ पैरेलल, लेट मी हम्म, ड्रॉ पैरेलल. हम्म, अफगानिस्तान से लोग निकले जब हम्म, रशियन इन्वेजन हुआ 79 में, जस्ट 8 years, हम्म, आफ्टर 8 years, राइट, ज्यादा हम्म, लंबा टाइम. अफगानिस्तान से लोग निकले, पाकिस्तान में पहुंचे, वही हम्म, लोग निकले कुछ ईरान में पहुंचे. हाँ, पाकिस्तान ने उनको यूज किया, ठीक है, जिहाद के लिए, क्लाशनकोव कल्चर एंड ब्ला ब्ला हम्म, ब्ला, अपनी मुस्लिम ब्रदरहुड के चक्कर में, क्योंकि उनका यूज करना था, वापस उनको अफगानिस्तान भेज के जिहाद करवाना था. उन्होंने अपने पास जो रेफ्यूजी थे, अफगान रेफ्यूजी, it became a problem for Pakistan itself after a decade or so. हम्म, ठीक है, हम्म, but same set of people in Iran, they never became problem. Why? ईरान ने उनको confined एरिया में रखा, हाँ, उनकी रजिस्ट्रेशन की और उनको बाद में कहा जी कृपया. जाइए, हाँ, जाइए. ठीक है, सेम काम हम कर सकते थे अपने एरिया में. अब जो बंगाली आ रहे हैं उनको हम रखते, मान लीजिए हम इन्वेजन प्लान नहीं कर रहे थे, मान लीजिए, हालांकि 3 दिन बाद ही भी स्टार्ट है, पर मान लीजिए हम इन्वेजन प्लान नहीं कर रहे थे हम, और 3 दिन में तो कोई इतना बहुत बड़ा क्राइसिस नहीं बन गया, क्योंकि वो जो फ्लो ऑफ पीपल No, था no, no. इट वाज See, कमिंग इन वेव्स.
what I'm trying to say is the moment we saw that if we are not occupying Siachen, okay, from one side Pakistan, from other side China, okay, and they will not only threaten our Ladakh, they might come to the Spiti. मैं समझ गया, मैं इसीलिए मैंने दोनों सिचुएशन को बता रहा हूँ, क्योंकि इन एनी केस ये जो पूरा जम्मू एंड कश्मीर का इलाका है, गिलगित बल्तिस्तान, इधर Hmm, लद्दाख, अक्साई hmm, चिन, वी hmm. क्लेम इट इज आवर्स, we claim it is ours, so technically we went into our own land to No, no, no. protect See, it from not getting occupied. I Bangladesh was a total foreign country. It was not threatening our external boundaries at all. He agreed. still took a big decision, No, going agreed. to war. Agreed. What I'm trying to say is, आपकी इस बात से मुझे एक हिंदी फिल्म याद आ गई, चमेली की शादी, अनिल कपूर, अमजद खान, अमृता सिंह। इन दैट वो अमजद खान का एक डायलॉग है कि कब्जा सच्चा, झगड़ा झूठा। मैं क्लेम करता हूं कि अक्षय चिन मेरा है, गिलगित बाल्टिस्तान मेरा है, लेकिन कब्जा अभी किसका है? पाकिस्तान का और चाइना का। कल को अगर कोई स्किर्मिश या कोई ऑपरेशन या कुछ भी होता है, उस जमीन का यूज कौन करेगा? पाकिस्तान करेगा, चाइना करेगा। वहां से अगर उनकी फौजें आती हैं, उनकी सेनाएं आती हैं, तो जो हमारा एरिया है, एक एक करके हम दोनों को संभाल सकते हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट 1984 थिंकिंग, ओके। एक एक करके हम दोनों को संभाल सकते हैं, बट अगर दोनों फोर्सेस एक साथ मिलेंगी, और उस समय हमारी, आज भले ही हमारी 60,000 70,000 सेनाएं हैं लद्दाख क्षेत्र में, उस समय कितनी थी? प्रोबेबली 5,000। वहां पर उस पे मेरा व्यू पॉइंट अलग है। मेरा हाँ, व्यू पॉइंट इसलिए मतलब अलग है क्योंकि सियाचिन वो इलाका है जिसपे आप एक यूजुअल लिंकअप नहीं एस्टेब्लिश कर सकते। जो कई एक बार एक फोरम पे भी मैंने ये देखा कि एक सज्जन ये कह रहे थे कि भैया अगर हम सियाचिन पे ना रखे तो इधर से पाकिस्तान और उधर से चाइना तो एक हाँ, पिंसर मूवमेंट बनती है, राइट। मैं कह हाँ, रहा हूँ भाई वो टेरेन ऐसा है नहीं कि वो पिंसर मूवमेंट को अलाउ करे। वो किसी एक नॉर्मल जो मिलिट्री ऑपरेशन में एक जो लिंकअप होता है फोर्सेस का, वो लार्ज फोर्सेस का होता है। हाँ। सियाचिन वो इलाका नहीं है कि वो उस लिंकअप को सार्थक बनाने के लिए 1% भी जगह दे रहा हो और उसका कोई बहुत ऐसा इफेक्ट भी आने वाला हो हम पर। सेकंड, जो मेरा दूसरा पॉइंट ये कि अक्साई चीन में आपने कहा कि भैया कब्जा सच्चा झगड़ा जीता, राइट। अब अक्साई चीन पर पाकिस्तान का चाइना का कब्जा है, इधर पाकिस्तान का कब्जा है। द मोमेंट पाकिस्तान ट्राइड टू कैप्चर वन पीक इन ड्यूरिंग कारगिल, वी रिटेलिएट। व्हाई? यस। पूरी बात हाँ, व्हाई? क्योंकि दे ट्राइड टू चेंज द लाइन। लाइन, यस। ठीक है ना, मतलब मेरे को थ्रेट आ गया, मेरा इलाका है, उन्होंने कब्जा करने की कोशिश की, आई टेक दम ऑफ। गलवान में कैलाश दे ट्राई टू टेक एडवांटेज हाँ, ऑफ, कैलाश रेंज पे ठीक है, चढ़ गए हम। हम कैलाश रेंज पे चढ़ गए, ठीक। हाँ, इधर हमको क्योंकि अनमार्क्ड है, कोई भी वहां पर है नहीं, हमें हम्म, लगा उसकी इंटेंशन है हमारा इलाका है, हम चले गए, पूरी दुनिया में किसी ने कुछ नहीं हम्म। कहा। बांग्लादेश वॉज अ सेपरेट कंट्री, वी वेंट ऑल आउट वॉर It was विद अ more of a कंट्री। political decision. Bangladesh was, Fine, but somebody had the wisdom, somebody yes, had the wisdom. So if you read this book, it was. Wow. Okay, The Burning Shafir. बर्निंग Basic. शाफी, इस बुक पर वो पिक्चर बनी है, वो पीपा, हाँ, पिप्पा। पीपा मूवी जो है वो ये सज्जन हम्म। इन पर बनी, राइट। इस बुक बीएस में मेहता। जब इनके स्क्वाड्रन ने सबसे पहले ईस्ट बंगाल के हमारे वेस्ट बंगाल का बॉर्डर क्रॉस करके उधर किया, देन ही राइट्स दिस वाज द फर्स्ट टाइम इन थाउजेंड्स ऑफ इयर्स व्हेन वी वेंट इन ऑफेंसिव। फॉर थाउजेंड्स ऑफ इयर्स वी नेवर वेंट इनटू ऑफेंसिव, we had been happy डिफेंसिव in हो our गया homeland. ऑलवेज। If you come, we will fight. If you do not come, you stay happy in your home. We are happy in that our home. Vasudhaiva यस। Kutumbakam, right? That was the first day. It was, I think, 21st of November. Battle of Garipur, 21st of November, or maybe 23rd. I'm forgetting. 21st of November, 1971. When his tanks crossed over, that was the first day when we went to an offensive. Now, changing the gear of thousands of years from defensive to offensive.
That's a paradigm shift. Defending my land with all the might is not a paradigm shift. That is what I'm supposed to do. No, yeah, But I went into Bangladesh. I went into Bangladesh with not a desire to control, to occupy even a village. I went into Bangladesh because I wanted to help refugees. I wanted to control, save loss of humanity genocide. there, Yeah, genocide, etc., etc. But I also wanted to balance Pakistan. At that time, I had three front war: West yeah, Pakistan, China, East Pakistan. Right? It is ये तो शुक्र है भगवान का कि पाकिस्तान के जनरल्स ने हमेशा से ये सोचा कि डिफेंस ऑफ ईस्ट लाइज इन वेस्ट. yeah. अगर वो उल्टा सोच लेते हमारा तो बम्बू लग जाता. East is a bit tricky. Our ट्रिकी, eastern राइट. border is very tricky. और मेरी नेक्स्ट बुक पे मैं वो एक चैप्टर लिखने वाला हूँ, मतलब मेरे दिमाग में है, मेरे को वक्त नहीं मिल पाता है. तो वो किस तरीके से मैं वो भी एक्सप्लेन करने वाला हूँ उसमें. अब अगर मान लीजिए हम एक सिर्फ इस कारण के लिए हमने पूरी ऑल आउट वॉर दुनिया से पंगा लेके, Hmm. अमेरिका से पंगा लेके, मतलब उससे ज्यादा बड़ा गियर आई डू नॉट नो. उसके बाद 71 जो was. पैराडाइम शिफ्ट आया है वो ये है ऑप सिंदूर के वक्त. नाउ इफ यू डू एनीथिंग फनी, Hmm. You will एक have टेरर it. अटैक, because Hmm. we have paused our operation. The moment you try, we Start. will reinitiate, Yeah. right? So that's a paradigm shift. इससे पहले the greatest paradigm shift that was complete, and that was 3 days after that crackdown started, Operation Searchlight. 25 मार्च को उन्होंने ऑपरेशन सर्चलाइट शुरू किया है. Yeah. 28 को भी हैड मीटिंग. इन 3 दिनों में कितने रेफ्यूजी आ गए. बट वी शी हैड द विजडम टू go for it. She had the courage. She had the courage to take such a astounding and tough decision. And military leadership was capable enough to carry it forward. Manek Shah was, in a way, he was blessed. In a way, our country was blessed to have such military leaders who had their heads over their shoulder. Otherwise, leadership has been deteriorating since then, right? तो अगर मान Mm. लीजिए उस वक्त, if we had no Manek Shah, if we had No, see, no, Maniksa was there, Sundarji was there, Jacob was no, no, there, no, 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 it was not Sundarji, Sagat. So if we had no Manek Shah, if we had no Sagat, if we had no Inder Gill, or no Jacob. if we had Jacob, uh, my opinion is different. He's Okay. he has been trying to punch way above his weight. Sorry. Manik Shah was asked, he never replied to General Jacob's claim, but once General V.K. Singh, who wrote a very good book, Leadership in Indian Army, Biographies of 12 Soldiers. So one should Mm. read this. Beautiful book, beautiful book. In that, author of that book, General V.K. Singh, he's from Signals, and I asked him this question that, okay, because I have been asking this question to so many generals. So when I asked him, he responded. He said, Sumit, I asked Manik Shah once that General Jacob has been saying this. So what do you think? And General Manik Shah replied, Indian Army would be doomed the day staff officers start winning the wars for them. Okay. Okay, and I can list down n number of things to rebut General Jacob. N number of things from his own book. Where is it? From his own book. I'll find it. It was right here. Okay, it's lying somewhere here from his own Yeah, book. It's not here. yeah, that's okay. So, yeah, Okay, uh, I think good enough. Good good enough. enough. So, Yeah, तो it's been अच्छा close to two ऐसे hours. सी इस तरीके के जो बुकिंग क्वेश्चन होते हैं, दे आर इवन बेटर. They make my brain work even in a better way. So I Yeah, would I be really mean, very happy if you have some questions like this. sure, I will have next time. So, next Sure, time sure, sure. again, we'll meet. And तब तक के लिए thanks a lot, आप Sumit. सबको जय हिंद. धन्यवाद. नहीं नहीं नो, प्लेजर वाज ऑल माइन. So it's good. Uh, Um, uh, Generally, I love talking about all this. I Same love here. talking about it. Same here. So if It, I, it was going on in my mind for a long time. There were many thoughts coming, and then I thought, why not to share with my near and dear ones and all those who would love to watch me.
And then this idea came, and well, here we are talking. Thanks a lot. And till we meet the next time, okay, not I wish until you a pleasant day, and I wish everybody who's hearing it a very mm, good time. Enjoy your lives, and Jai Hind. thank you. Jai Hind. And